नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ कहां है? हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय भारत, जय भारत। I love that name. Yes, yes, yes. I absolutely love the fact that we are now going to be calling ourselves Bharat. India is fine. I love India too, but that was a name given by the Greeks and later on by other colonialists. And the Indian mindset perhaps is a colonial hangover. I believe that at the end of the day, you have to be what you are, not what other people make you out to be. And we'll of course talk about G20. We will talk about G20 in just a little while. I know our chaps are very eager to show all the footage they've got from Delhi, which is nice. But Pradeep ji, Delhi Declaration, fantastic, great work by everybody. Exactly, sir. Our friend अमिताभ कांत साहब, जो एक जमाने में, पता नहीं आपको याद है कि नहीं प्रदीप जी, OSD हुआ करते थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम MM जेकब साहब के। यस 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 यस। और उसके बाद वो बने CEO ऑफ द कैननौर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट उन्होंने बनाया साहब केरला में बाय पब्लिक फाइनेंसिंग। यस यस। I think that's the man who is the G20 Sherpa. I think he and his team and the entire team of diplomats from the government of India, government of Bharat, needs to be congratulated. You know, they've actually worked out a consensus on the Russia-Ukraine conflict. I mean, that's remarkable. Yes, yes, that is brilliant. I mean, the entire credit goes to Mr. Modi. मतलब ये पूरा का पूरा श्रेय जाता है मोदी साहब को। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पर कहीं पर भी कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर भी जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं लावरोव साहब और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो बाइडेन साहब एक ही भाषा बोल रहे हैं। मतलब अमेजिंग स्टफ, एब्सोल्युटली अमेजिंग। वी I mean, this is, जितना भी इसकी तारीफ की जाए वो कम है, मुझको ऐसा लगता है। Consensus, to achieve a consensus, total consensus, that's a great achievement in itself. And fantastic. The Delhi Declaration, G20. Let's ask Mr. Abhishek Mishra. Mr. Abhishek Mishra is with us from the BJP. Abhishek Mishra साहब नमस्कार। I think we haven't got. Can the production team find out what's wrong with the voice? Why am I not hearing Mr. Abhishek Mishra, who's wearing a wonderful colored shirt? Is that a shirt or a kurta? It's really looking beautiful. What is that, by the way? Is that a shirt or a kurta? It's a kurta. Really beautiful. Yeah. Wow, lovely, absolutely lovely. Really suits you. Thank you. Really suits you. Abhishek Mishra साहब, तो आज तो मतलब कमाल ही हो गया। कंसेंसस यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट की वर्डिंग के ऊपर भी, उस शब्दावली के ऊपर भी कंसेंसस। माय गॉड, दैट इज ब्रिलियंट। एंड दैट टू लुक एट द पीपल हु हैव एंडोर्स्ड इट, जस्ट अबाउट एवरीबडी। और तो और छोड़िए, अगर आप दिल्ली डिक्लेरेशन का पॉइंट नंबर 11 और 12 देखें, वहां पर वी हैव आल्सो थैंक टर्की। तुर्की और यूनाइटेड नेशंस के बीच में जो एक करार हुआ जिसकी वजह से with regard to the food transport, that is wheat and grain transport from the Black Sea ports, even that has been worded in such a way that it has been endorsed by everybody. So brilliant stuff. Your thoughts, Abhishek Mishra ji, बताएं। The Honorable Prime Minister Narendra Modi ji had given a very strategic thought for the G20 summit. It was one earth, one world, one family. Now, the entire focus of our nation while doing the G20 the declaration, it was that it should be a human-centric development. So on that message that we as a global community have to be united and the development, the path forward has to be human-centric, and that message has been accepted by all nations of G20. So today, if we have been able to build a consensus on Russia and Ukraine, it is only because all the nations, part of G20,
they understood that India's intent is right. India's intent is to build a global community, a shared future where all nations are benefited, because we treat the world as one. And because our main thrust, that it is not only about economic development, it is not only about becoming a military power, it is about a human-centric developmental path. And that is why today Russia as well as the United States have agreed to the spirit of Narendra Modi ji and have come together, and the whole world was speculating. Most of the people were of the view that it would be very difficult to build a consensus because Russia, China will not agree. But because the message of India was so strong, because the leadership of Prime Minister is so it is so vibrant, that all the nations had to come together, and this is a victory for India. This is a victory for Bharat. It is a victory of our culture, our civilization. It is a victory for the Prime Minister. It is a victory of the people of India. And when all the leaders of the world had come to Delhi, they all agreed to the eternal spirit of India, the spirit of oneness. And they came to a conclusion, and the war, the Russia-Ukraine war, which is the biggest problem in today's world, we have at least managed to find the path forward. The path forward will be consensus. Path forward will be by coming for a dialogue and coming together. And today, if Russia and America can come together for a declaration, it proves that peace will be, it is going to happen very soon. And Fantastic. This is a very welcome step for the whole world. And here we must congratulate the foreign minister as well, Mr. S. Jaishankar, and his entire team, and the manner in which they work. They worked individually with every country. They worked individually with the delegations accompanying all the leaders. और यहाँ पे लावरोव साहब जो हैं हमारे foreign minister रशिया के, and Joe Biden's team, they've all earlier they were not even talking to each other, but I believe all these guys got together, got them on the same page, and did it, which is absolutely fantastic. And I believe Mr. Modi thanked Mr. Rishi Sunak also, the British Prime Minister, where he also played a very stellar role in just getting this done. Because earlier, as you rightly said, Abhishek Mishra ji ने बोला, प्रदीप जी बिल्कुल ठीक बोला कि पहले ऐसे लग रहा था कि G20 का कोई जॉइंट स्टेटमेंट होगा ही नहीं. यहाँ तक ये तक बात आ गई थी कि इस बार कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी, because how will people agree? But this is amazing. We've got everybody to agree. The Saudi Arabian delegation that is led by the Crown Prince himself, MBS, they've agreed to everything. The Italian Prime Minister has agreed. The Canadians have agreed. The French have agreed. The French agreeing. Now that is something which is fantastic, because the French usually don't agree with anything that anybody does. But they agree with Mr. Modi, which is wow. And in spite of the fact that Mr. Vladimir Putin is not here, Mr. Xi Jinping is not here, Mr. Vladimir Putin is not here for very, very genuine concerns, Mr. Xi Jinping is not here for whatever reason, but in spite of all that, you know, the fact that a Delhi declaration has come out, and we've called a sustainable development group, which will continue to work even after this summit is over. और तीसरी चीज़ है कि तकरीबन 100 शहरों में अलग अलग जगह पर G20 के फंक्शंस किए गए, बाकी सब चीज़ें की गई. दिस हैज बिन द लार्जेस्ट, द बिगेस्ट G20 मीटिंग एवर. तो अभिषेक मिश्रा जी, हाउ डू वी सस्टेन दिस? अब इसके आगे क्या, ये तो हो गया, चलिए अब नाउ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी ह्यूज. अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाएंगी मोदी जी से और भारत से. उसमें अब क्या करेंगे हम लोग, अभिषेक जी? Yeah, see, the world is going towards all. It's not only about a single superpower, the United States. Now we, as it's a multipolar world. Yes, so it's a multipolar world, and we as a nation today are the leaders of the global South. The developing nations like India, we are playing a monumental role on the global stage, and we are deciding that the path forward is a path where there will be human-centric approach, where peace will be paramount, where prosperity will be given. You see, today African Union has joined the G20 at the invitation of Mr. Modi. Yes, Mr. Modi's work. Yes, sure. That the continent, which was called a dark continent, today has come into light. It is the leadership of India which has brought Africa into the G20. G20 was an exclusive place where the top economies would be there. Today, Africa becoming a part, which means we have, in Bharat as a country, after independence, we were all the former nations which were slaves, we should all have development. And by
by bringing our African people along, African nations along, African the society along. We have given a message for the future of the world. The future of the world will not be only of the Western countries, the European power. It will be of the Asian countries, the African countries. And Narendra Modi ji, he will be remembered forever for this. He will be remembered forever for providing development to the countries which are still to be developed, which are developing. And this great, I think he should be saluted. The whole world. Yes, Abhishek Mishra ji, you know what Mr. Modi said, one earth, one family, one future. That's what he said. Bharat, Vishwaguru, by the way of G20, the Delhi Declaration, and then consensus, absolute consensus. BJP calls it economic integration between India, West Asia and Europe. They say that India, this G20, India has created a corridor with its India, Middle East and Europe. You're talking about huge business opportunities. And the World Economic Forum president has said India is going to be a $10 trillion economy very soon, this decade itself. But the Congress has objections. Jairam Ramesh today issued a press release saying Mr. Modi is not one man, what you call, one, the entire definition of Vishwaguru, he said one earth, one family, one future. Jairam Ramesh says one man, one government and one business group. He says, Mr. Modi, in 2014 and 2018, you had in your agenda placed before the entire G20, eliminate safe havens of economic offenders, extradite the economic offenders. Today, none of them has taken place. Jairam Ramesh, Abhishek Mishra ji, ye kehna hai. We believe it's a fantastic success. G20, Delhi is a fantastic success. But the Congress has pulled. They said, Mr. Modi, you have not implemented whatever you said in 2014 and 2018. How do you see it, Abhishek Mishra ji? The Congress party, Jairam Ramesh, they have become against the nation itself. Today, it is the victory of Bharat as a country. Today is a victory of the entire population of India. It is not about Bharatiya Janata Party. On a day wherein the global nations, their leaders have come together and they have accepted the leadership of our country, when they have issued a joint declaration which gives a message forward for the whole world, and wherein the whole world today is saluting the leadership of our nation, because we have built a consensus on the Russia-Ukraine war which nobody could do till today. On such a day, to speak against the country, to speak against the government, because today it is not a BJP function, it is a function of Bharat as a country, it is a function where the global leaders have come, and today we have succeeded in showing that India can lead the world, Bharat can lead the world. And on such a day to speak against Prime Minister, government, that shows the eternally pessimistic, defeatist mentality of the Congress party. Definitely, the people of Bharat will come together and teach this Congress party a lesson. They are again and again doing activities which definitely can be considered not in the interest of the nation. Why are they doing anti-national activities? I am not aware. When the entire world has accepted the spirit of India, Vasudhaiv Kutumbakam, one world, one earth, one family. Congress party says one government, one man. What is all this? What is this? If Sergei Lavrov and Joe Biden can come to a conclusion because of Prime Minister Modi ji, Jairam Ramesh must, in the spirit of fairness, at least appreciate that. Yes, you criticize the Bharatiya Janata Party, but today, when the government of Bharat has managed to do a Delhi declaration which the whole world is saluting, it can give a message of peace to the whole world, it can give a solution to the conflict of the Russia-Ukraine war. On such a day for the Congress party and Jairam Ramesh to criticize the government, criticize Modi ji, criticize the BJP, that eternally shows that they are just doing politics. They have lost all sense. That they are against the nation, and this is wrong for the country. Yeah, I want to tell you, Abhishek Mishra ji, I'll tell you why. This is कल से जब G20 शुरू हुआ है, राहुल गांधी was in Brussels, Belgium. कल से राहुल गांधी ने शुरू किया कि लोकतंत्र खतरे में. He says democracy is in danger. Institutions are being targeted by the BJP, and the Congress will fight to freeze these institutions. Congress will fight to protect democracy. That's what he said. But as you said, the World Economic Forum president said that India is going to be a $10 trillion economy in this particular decade itself. And he says why? He says after COVID,
the demand for commodities has reduced and the demand for service industry has increased. And he says India is a big exporter of services. That's what he said. I mean, he's given reason also why India will be a $10 trillion economy. You got this going on, G20 super success, all world leaders, including economic forums, praising India. You got Rahul Gandhi telling Loktantra khatre mein hai, BJP is targeting institutions, Congress will work towards freeing these institutions and democracy. How do you see it, Abhishek Mishra ji? See, Rahul Gandhi is a non-serious politician. When the nation is hosting G20, he is going abroad and trying to tarnish the image of the country. This act itself proves that in his mind, power and politics is above everything else. Otherwise, he would have had the sense that when G20 summit is going on, at least at that time, not to, whatever poison he has in his mind, not to bring that out. But Rahul Gandhi, during G20 summit, when our nation is hosting the global leaders and trying to create a consensus for the whole world, at this time for Rahul Gandhi to go to Europe and speak against our nation, Bharat, that proves that Rahul Gandhi only is interested in politics. He has no spirit of nation building. He has no spirit of what our nation is doing, the leadership for the world. He just wants at any cost to speak bad about the country, bad about the our party in power, and that itself shows there is some psychological issue with this man, Mr. Rahul Gandhi. अभिषेक मिश्रा जी, यहाँ पर एक छोटी सी बात है, जैसे it's not a very big thing, but all the same, one must ask this. As far as the Congress is concerned, एक और criticism कांग्रेस की तरफ से ये आया है कि भाई जब नॉन अलाइन मूवमेंट होती थी, उसका कन्वेंशन दिल्ली में कई बार हुआ है, एटलीस्ट आई हैव अटेंडेड 2 of them, और उसके अलावा कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग में जो है, उसमें जो प्रेसिडेंट का जो डिनर होता था, बैंक्वेट जो होता था, उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी या प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी बुलाया जाता था. ये बात बिल्कुल ठीक है. अटल जी को कई बार बुलाया गया, LK अडवाणी जी को कई बार इनवाइट किया गया, वगैरह वगैरह वगैरह. इस बार इतनी बड़ी चीज हो रही है टू शोकेस आवर डेमोक्रेसी. परहैप्स द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन इंडिया, मे बी मिस्टर खड़गे और मे बी मिसेस सोनिया गांधी, कुड हैव बीन इनवाइटेड. योर थॉट्स ऑन दैट, Abhishek Mishra ji? See, these are issues of administration and people who are part of the deciding the menu, protocol, Yes. etc. Yes. Invites. So this is a technical aspect which I cannot, as a BJP spokesperson, I cannot speak on It's this. a matter of protocol. It all depends upon what is there, what is not. I agree with you. So that's what I'm saying. This is a pure. No, but all the same, I had to ask the question. I cannot comment on this. ये भाई ये सवाल पूछना लाजमी था मेरे लिए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सवाल आया है. सीधी बात है. मैं ये कह रहा हूँ कि this is a purely I agree with matter you. of I agree with you. There is no disagreement here. There is no disagreement here. लेकिन एक चीज बिल्कुल दुरुस्त है कि इसके बाद अब प्रॉब्लम क्या होने वाली है मेरी समझ में. देखिए साहब, जो हम लोगों ने ये कहा है कि पेरिस एग्रीमेंट को वी विल ट्राई एंड मीट. अब इंडिया, दैट इज भारत, वी हैव फुलफिल्ड ऑल आवर कमिटमेंट्स बिफोर टाइम. कार्बन एमिशन एक जो कमिटमेंट हमारी थी पेरिस एग्रीमेंट के बाद, वो हम लोगों ने फुलफिल कर दी है. ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, फ्रांस, कनाडा, ऑल दीज पीपल हैव नॉट फुलफिल्ड इट. जितने डेवलप्ड नेशंस हैं, दे हैव नॉट फुलफिल्ड ऑल द प्रॉमिसेस दैट दे मेड इन द पेरिस एग्रीमेंट ओवर कार्बन एमिशंस. एंड दैट इज व्हाट मेक्स द इन्विटेशन टू द अफ्रीकन यूनियन टू जॉइन द G20 very, very significant, because as now everybody says, why should the developing countries have to pay for all the irresponsibility shown by the developed nations? So over there again, Mr. Modi's voice is being heard all over the world. See, India is a responsible country. We as a nation are fulfilling all our global, whatever task, whatever, plans. Whatever commitment we have made, yes. Now the main thing is happening is that there are countries like our neighboring country. Beijing is not even fulfilling any of its commitments. No, they're not. They're not even releasing data. That's what I'm saying. So Beijing, the government in, Xi Jinping is an irresponsible leader. His country is irresponsible. We are irresponsible. That is why when the G20 summit was held here, that the whole world came to a consensus, because India has earned that, in the whole global community. And this is a nation which fulfills its whatever it says. So we have earned the respect of the global community. Yes. I think in the future we will see that Modi ji has given that India will be a developed country.
we will lead the world. This century will be ours. It is all going in that same direction. And with regards to the all the things you said, I totally agree that we today India is poised to be the after US we will be the second most powerful nation, I think, in around 10 to 15 years in the world. No, we already are. On that, there is no doubt. We are already the second most powerful democracy in the world. Let's be very, very clear. China is not a democracy by any stretch of the imagination. Even though they call themselves the Democratic Republic of China and so on and so forth. I mean, they have a very strange view of democracy. They say you have a multi-party system, we have a single-party system, but we are a democracy. मतलब अजीबोगरीब मसला है वहाँ पर। लेकिन चलिए ये तो G20 की बात हो गई, अभी भी G20 चल ही रहा है। उसके पहले जो बाइडेन साहब यहाँ पर आए, एक दिन पहले आ गए, 2 दिन पहले आ गए, जो बाइलैटरल टॉक्स हुई यूएसए और इंडिया के बीच में, there are lots and lots of contentious issues, I believe, which have been solved, which have been resolved, including the matter of visas and including a couple of other things which were sticking points with regard to transfer of technology, with regard to the MOU which had been signed between Mr. Biden and Mr. Modi when he had gone over there to the US, with regard to the development of the stealth fighter engine over here in India. All that, I believe, has been resolved. That is what we are hearing. What are you hearing, Mr. Mishra? See, the diplomatic, the world, it's very clear that US and our country, we have developed such a strategic partnership wherein all the issues, military cooperation, economic cooperation are being discussed in detail, and we have come to solutions. And definitely, see, we are part of the larger alliance as well. So US, India, Japan, Australia, UK, we are all now today partners for a developing world, for a world where there is peace for all and prosperity for all. So between the United States and India, as two large democracies of the world, as two countries where there is freedom, where there is the rule of law, we have decided that we have to shape the future of the world. Yes. And that's why on all important matters, economic matters, military matters, we have come to almost an understanding on most of the issues. And that is why, if you understand that in this Delhi declaration, this G20 which happened in New Delhi, United States played a major role in ensuring that this declaration, this summit becomes a success. US was determined that our country should lead the world. They have ensured that all contentious issues should be solved. And that is a great victory for India. But this is fantastic. I tell you what, Mr. Mishra, Pradeep ji, I think we have forgotten that particular point. This is very, very important. Listen, I know I'm going to get a lot of flack for this. We have a lot of people, who are totally pro-left, pro-Congress and so on and so forth. I know I'm going to be called a Bhakt again. I'm going to be called a khaki chaddi again. And incidentally, I am wearing khaki underwear today, so there is no problem. But all I'm trying to say is this. Mr. Modi goes to Jakarta, attends the ASEAN summit, talks to everybody over there, and again arrives at a consensus with all the ASEAN nations, along with Kamala Harris, who is the Vice President of the United States, and immediately comes back and conducts the G20 meeting over here, which is amazing. I mean, look at the energy of the man. Where does he find this much of energy from? I mean, does he sleep? I don't think he ever sleeps. आप देखिए तो सही, मतलब सीधा अभी जकार्ता से आए हैं और फटाफट मतलब दिल्ली में आकर के उन्होंने जो बाइडेन के साथ बायलैटरल मीटिंग करी, उसके बाद 2 और बायलैटरल्स हुई, ऋषि सुनाक के साथ एक और बायलैटरल हुआ, उसके बाद 2 और देश हैं उनके साथ हुआ, और and he met the Italian Prime Minister. This is amazing. Where does he find the energy from? What is the inner party gossip that you get? How does Mr. Modi work so hard? It is very clear. Our Prime Minister has the love for the people of India, for Bharat, and he is determined to serve the motherland. And that spirit of service, it gives him the vitality to work 24 hours a day. He has never taken an off day. 365 days a year he's working for the nation, and because he sees only one goal, the goal of developed country. He sees only one thing, that the entire nation must be developed, and he wants to make our nation a Abhishek Mishra ji, G20 presidency,
G20 presidency, the BJP, Mr. Modi has made India proud. When he says, the BJP says 220 meetings, 60 cities, 28 states, 8 union territories, 1 lakh participants, 125 nationalities, 1.5 crore people are getting directly involved in this entire G20 business. Now that's an achievement in itself. Every function that he has here, he is turning it to the benefit of the people of Bharat. That's what Mr. Modi's ultimate objective. And the corridor that we talked about today and $10 trillion economy, these are great things told by individual entities who are not aligned to Mr. Modi. They have said, look the way, the giant leap that India is making. But at the same time, the Congress says, the Indian National Congress, they say 74% of the people can't afford nutritious food. That is what the Congress says. They say the thali has become 65% more expensive. They talk about food, they talk about 74% of the people can't have a nutritious meal. How do you see this kind of disparity? Here you see success, ultimate, up the horizon, and then Congress talks about things right, that defeats the entire purpose. They say we are zero. How do you see it, Abhishek ji? No, I have already given the answer to this, that the Congress party has become a negative party. Their only priority seems to be to speak against anything good happening in this country. They do not understand that they, as a responsible party, must also stand with the nation when good things have been done for the, at the global stage. Today, when there is a declaration happening which has united the whole earth, where the whole world is saluting the leadership of our country, for the Congress party to speak against our nation, to speak against what we are doing as a government, it shows that their only priority, as I have already said for Rahul Gandhi also, their only priority is, power politics. They somehow are desperate to attain power. They have no respect that we as a country are hosting a global summit where we are creating a consensus for world peace, where we are uniting the countries of the world. And at such a crucial moment, if the Congress party can only come up with negativity, you understand, as a nation, they also should understand that there are times where you don't spread your poison. Yes, Congress has poison. It has desperation for power. But this was not the moment, this is not the opportunity, this is not the time to speak against the Prime Minister. If we go a little bit 2 days back, before this entire summit, Sonia Gandhi entered the entire, political battlefield. Sonia Gandhi, we're coming out of this topic, Sonia Gandhi writes to Prime Minister Narendra Modi. He says, she said, what is the agenda of the special parliamentary session that you had? We want to know the agenda. You have not told us the agenda. That is what Sonia Gandhi said. The rare moments that she comes out and lashes Prime Minister Modi or the BJP. She said, if you don't have an agenda, please include this agenda. She writes a letter. She's saying price rise is an agenda. Unemployment is an agenda. Falling incomes are agenda. Farmers' woes is an agenda. MSMEs that are shutting down is an agenda. Clean sheet being given to China on the border is an agenda. Modani scam is an agenda. Manipur constitutional breakdown is an agenda. Sonia Gandhi is telling the BJP and Prime Minister Modi that if you don't have an agenda for the special parliament session, there should be an agenda. How do you react to this, Abhishek Mishra ji? See, Sonia Gandhi ji, with all respect, she's a senior leader of the country. What is her agenda? Her agenda was 2G scam. Her agenda was, ministers have been sacked when her UPA government was in power. At that time, why was she not writing letters to those ministers and Prime Minister Manmohan Singh that why are you doing so much corruption? Why at that time the Congress party, in every ministry, every department, the loot was happening in the country? So Sonia Gandhi ji, she's a respected senior leader of the country, but the truth, I don't want to, this is not the time, but she should self-reflect. When her government was in power, the nation was being looted, and that is why the whole country, Bharat, became united under the leadership of our Prime Minister Modi ji. So instead of speaking about our agenda, she, because of her hatred for the BJP and because of the good work we are doing, she should self-respect and find out what was the agenda, what is the agenda of the Congress party for this country. No, but Abhishek Mishra ji, I think that you're being slightly unfair over here, because the fact remains that because the agenda has not been announced, so the opposition parties also have a right to know exactly what is the agenda. I suppose 2 days before the session starts, there will be the regular meeting between the Speaker of the Lok Sabha and the
chairman Yes. of the Rajya Sabha, with all the opposition leaders as well, and then I think everything will be made clear, which is all right. I mean, this is okay as far as the the political back and forth is concerned. That's what makes us a democracy, which is great. But one final word. In fact, even Dr. Manmohan Singh has praised India's stand on Russia and Ukraine. So that's absolutely great. Dr. Manmohan Singh, twice Prime Minister, has actually praised the Modi government stand on Russia and Ukraine. He said that that is the best thing that could have happened, so which is fantastic. Right, thank you so much, Abhishek Mishra ji. It's been a great pleasure talking to you, and congratulations once again for the Delhi Declaration. Congratulations to the whole of Bharat. Bharat that was India, or as Bharat that is India, I don't know. It is India which is Bharat, that's what the constitution says. So now it is Bharat that was India. Is that it? Well, thank you so much. Namaskar. Pranam. Namaskar. Vande Mataram. Vande Mataram. But that was nice. Dr. Manmohan Singh actually showing great sportsman spirit. Not only Manmohan Singh talking, and today, in fact, we were just going through Umar Abdullah telling that the Ji. security in Kashmir. Yeah, yesterday you saw that interview. 370 has been he didn't say a success, but he says I should give credit For law and order. For law and order, and security is intact. The business and the businessmen feel The hotelier that, business, yes, that the is doing well. hoteliers, yes, because it's tourism business. They feel the people conducting the business feel safe. Now that's a great thing. Right, and at the moment with us to talk more about that is our friend Mr. Bharat Singh. Bharat Singh ji, Indian National Congress के. Bharat Singh साहब, नमस्कार. नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार. आप लोगों को नमस्कार. बहुत जय दिनों हिंद के सर, बाद, जय हिंद. बहुत दिनों के बाद. नहीं नहीं, वो बहुत बिजी हो गए थे ना सर उसमें. yes. 31 और 1 सितंबर की मीटिंग में बहुत बिजी हो गए थे. बोल तो रहे थे कि भाई मैं वहीं पर रहूंगा. हमारे तो लोग गए थे वहां पे. लेकिन भरत सिंह जी ये बताएं, मतलब माय रिस्पेक्ट फॉर डॉक्टर मनमोहन सिंह रियली गोज अप. मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने एक्चुअली बोला कि भाई जो इंडिया का जो स्टैंड है रशिया और यूक्रेन पे वो बहुत अच्छा है. इट इज वेरी वेरी गुड फॉर द कंट्री, एंड आई थिंक दैट शोज द काइंड ऑफ स्टेट्समैन ही इज. मतलब जो स्टेट्समैन लाइक अप्रोच उन्होंने दिखाई है वो जबरदस्त है, मानना पड़ेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को. इसके बावजूद कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर न जाने कितने आरोप और कितने लांछन लगाए गए इसी सरकार द्वारा, इसके बावजूद मनमोहन सिंह ने कहा है कि रशिया और यूक्रेन के ऊपर जो स्टैंड है वो बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है. भरत सिंह जी. सर आपको आवाज आ रही है? He can't hear. हाँ जी. अभी आ रही है आवाज आपको? जी आ रही है. मैंने ये कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रशंसा की है भारत के यूक्रेन रशिया स्टैंड के ऊपर, और जिस प्रकार भारत ने रशिया से ऑयल खरीदने का निर्णय लिया कि भाई कोई भी हमको निर्देश नहीं दे सकता कि भारत कैसे बिहेव करेगा. मनमोहन सिंह जी ने भारत सरकार की प्रशंसा की है. मुझे लगता है कि इससे बड़ा दिलेरी का कोई और उदाहरण नहीं हो सकता. भरत सिंह जी. देखिए राजीव जी, मैं समझता हूं कि जो सरकार के अच्छे काम होते हैं उसे बताना भी जरूरी है, उसे सराहना करना भी जरूरी है. जी दुरुस्त बात. मैं कह रहा हूं कि जो सरकार के काम होते हैं, अच्छे काम होते हैं, अगर उसकी सराहना की जाती है तो उसमें कोई खामियां नहीं निकालनी चाहिए और खूबियां ये होना चाहिए. विपक्ष का भी काम होना चाहिए, और विपक्ष हमेशा जो है क्रिटिसाइज करता है. वो हमारे देश की बात है, हमारे पार्लियामेंट आपस की बात है, हम उसको बैठ के तय करेंगे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना. लेकिन जब अगर प्लेटफॉर्म आता है, अगर बाहर का आता है, अगर विदेश का आता है, अगर उस चीज पे कोई अच्छा काम हुआ है तो उसकी सराहना करनी चाहिए. और शायद मुझे लगता है कि इसी मद्देनजर देखते हुए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने जो कहा वो मुझे लगता है कि सही था. और अभी राहुल गांधी जी ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ब्रसल्स में, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ब्रसल्स में, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई देश में जनतंत्र राज्य जो है, लोकतंत्र जो है वो खतरे में है. क्या आपको लगता है अभी भी क्या लोकतंत्र खतरे में है भरत सिंह जी? I don't think Mr. Bharat Singh can hear us. Can we solve this problem, please? Why can't Mr. Bharat Singh hear me? Bharat Singh जी आपको आवाज आ रही है सर? कुछ कट के आ रही है आपकी आवाज. कट के आवाज आ रही है. Can we solve that problem, please?
राहुल गांधी जी ने कहा है कि आज भी डेमोक्रेसी इज इन डेंजर इन इंडिया। ब्रसल्स में उन्होंने ये कहा परसों। देखिए, लोकतंत्र खतरे में है, ये जी बोलिए बोलिए सर, बोलिए, वी कैन हियर यू। देखिए राजीव जी, ये हम आज नहीं पहले दिन से कह रहे हैं, सरकार जब से बनी है और 2019 के बाद तो एकदम ज्यादा ही लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है। जिस हिसाब से देश में आज सरकार चल रही है, जिस हिसाब से विपक्ष के ऊपर अटैक किया जा रहा है, जिस हिसाब से विपक्ष के नेताओं को फंसाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष के नेता तो छोड़िए, देश के जब जज, सुप्रीम कोर्ट के जज अगर ये बाहर आके कहते हैं कि देश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, तो मुझे लगता है लोकतंत्र खतरे में है। अगर भाजपा के नेताओं की कथनी और करनी को देखेंगे आप, तो उससे लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। उनके सांसद बदतमीजी करें, उनके मंत्री पूरे पार्लियामेंट में दादागिरी से बात करें, उनके सांसद जो है महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करें, उनके मंत्री रेप जैसे केस में जो है मुझे लगता है कि एफआईआर दर्ज हो गई हरियाणा में, ऐसे लोगों का बचाव करे तो लोकतंत्र खतरे में है। तो आज हरियाणा से लेके आप देखें मणिपुर तक जिस तरह से वारदातें हो रही हैं, जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, उससे कहीं ना कहीं लगता है। और उस पे ये है कि देखिए, ये भाजपा के नेता हो या देश के प्रधानमंत्री, अगर जो मणिपुर में घट रहा है, एक बार भी उन्होंने जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने गलती की है कि नहीं की, उनका सपोर्ट करते हैं। तो लोकतंत्र खतरे में दिखता है कि भाई लोकतंत्र खतरे में है। भरत सिंह जी, इस G20 के माध्यम से बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि भारत विश्व गुरु बन जाएगा। मोदी साहब का मंत्र है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। मोदी जी का कहना है कि जिस प्रकार से तरक्की हो गई G20 के जो डिक्लेरेशन, दिल्ली डिक्लेरेशन, टोटल कंसेंसस में सब लोग, कोई ना नहीं कहते, सब लोग ने सराहा है, तो दैट इज ग्रेट। और उनका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन इंडिया, वेस्ट एशिया एंड यूरोप एक जबरदस्त तरीके से एक कॉरिडोर बन रहा है, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप। भरत सिंह जी, मगर जयराम रमेश जी का कहना है, जयराम रमेश जी इतने सक्सेस जब बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी पूरे देश और दुनिया को गिना रहे कि हम अचीवमेंट्स क्या है, जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि मोदी साहब आपने 2014 और 2018 में G20 में बोला था कि यू विल एलिमिनेट हेवंस ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है उसको आप पकड़ेंगे, एक्स्ट्राडाइट करेंगे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को। ये G20 में आपने खुद घोषणा किया था, मगर आज भी वही कि इकोनॉमिक ऑफेंडर्स देश के बाहर है, वो उनके पैसे अभी तक सरकार पकड़ नहीं पाए, सीज नहीं कर पाए। तो इस चीज को क्या ये उचित है इस समय में जयराम रमेश जी को इस प्रकार से बोलना? भरत सिंह जी, आप सुनिए नहीं, आवाज कट गई। आई थिंक इज नॉट वेरी लास्ट के वर्ड को नहीं सुना मैं। हाँ, जी बोलिए। आपने जो कहा कि सराहना होनी चाहिए, अगर कोई अच्छा काम होता है तो सराहना करना भी चाहिए, लेकिन विश्व गुरु मोदी जी बन रहे हैं कि देश बन रहा है? मुझे लगता है कि देश अगर विश्व गुरु बनता है तो हमारे देश के लिए वो एक मान सम्मान की बात है। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री और भाजपा ये कहे कि भाई देश के प्रधानमंत्री जो है विश्व गुरु बन रहे हैं, तो ठीक है, बनना भी चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री बनते तो ऐतराज किससे है भाई? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूं कि वो कहीं दूसरे देश के प्रधानमंत्री हैं। रही बात जयराम रमेश जी की, आपने कहा कि जयराम रमेश जी ने क्रिटिसाइज किया, तो जयराम रमेश जी ने ये कहा कि जो मोदी जी कहते हैं अपने वादे को निभाने की बात जब करते हैं, तो वो जितने वादे किए कभी उन्होंने निभाया नहीं। आप उसका एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है राजीव जी, आप उसको देख लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि आज तक उन्होंने जितने वादे चुनाव में किए हैं या टीवी पे आके उन्होंने कहा है उसे पूरा किया होगा। इसीलिए जयराम रमेश जी ने इस बात को कहा। जयराम रमेश जी ने कहा कि जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, उनका कहना शायद ललित मोदी हो, अलग अलग मोदी जो है, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, तो ये देश के बाहर भागे
और G20 में आपने कहा था कि ऐसे भगोड़े जो पैसा चुरा कर भागता है उनको एक कानून के अंतर्गत एक्स्ट्राडाइट होना चाहिए, मगर ये सब लंदन में बसे हैं। जयराम रमेश जी का कहना है कि ये इसमें कुछ हो नहीं रहा है, भारत देश इसको आगे बोल रहे हैं बट लंदन से अभी तक कोई वापस नहीं आया, एक प्रोसीजर चल रहा है। इसी चीज का जयराम रमेश जी ने हाईलाइट किए कि G20 में आपने बार बार इस चीज को उठाया, क्या हुआ? मैं भी तो यही कह रहा हूं नाम्बियार जी, मैं भी यही कह रहा हूं कि जो नहीं, मैं भी ये आवाज नहीं आ रही जी, आवाज आ रही है सर। हाँ, मैं भी नाम्बियार जी, मैं भी ये कह रहा हूं कि जो मोदी जी वादा करते हैं वो तो करते नहीं ना। वही तो जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि G20 में जो इन्होंने सारी बातें पिछले जी उठाई थी उसका जो है उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। मोदी जी अब मैं कहूंगा तो फिर कहेंगे कि नहीं, जो है भरत सिंह जो है वो सारे मोदियों के खिलाफ जो है बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। मोदी जी के हाथ के नीचे से ये सारे लोग भागे हैं, लेकिन मोदी जी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता है ना, क्योंकि वो तो जो कहते हैं वो सच कहते हैं। भाई इस समय अगर पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में विश्व गुरु बन गए हैं तो हमारे में कहावत है, ना खाता ना बही, जो मोदी कहे वो सही। जी, लेकिन आपको लगता है कि भरत सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, आपको लगता है कि आगे चल करके नीरव मोदी साहब, ललित मोदी साहब, आदरणीय चौकसी साहब, विजय माल्या साहब, ये सब लोग वापस आएंगे क्या देश में? जब राजीव भाई, जब तक भाजपा सरकार में रहेगी आप लिख लीजिए आज जी, तब तक कोई मोदी अपने देश में वापस नहीं लाया जाएगा। ये सिर्फ चुनाव आते टाइम, चुनाव जैसे आएगा, अब चुनाव का मौसम आ गया है, ये सारे मुद्दे छेड़े जाएंगे, सारे मुद्दे उठाएंगे कि हम लाएंगे, हम सजा देंगे, हम पूरे देश, जो देश का माल जो है विदेश में गया है उसे भी लाके जनता को देंगे। ये कुछ नहीं होने वाला। देखिए, आप सोचिए कि जो व्यक्ति एक नारा चला था, शायद मुझे लगता है 2014 में, कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी की सरकार। जी, शायद ये बहुत घर घर में फेमस हुआ था। जी, हुआ था। ऐसे बहुत सारे सगुफे जो है टीवी पे सुनाई देते थे, मगर आज इन्होंने 9 साल में एक काम नहीं किया है। शायद मुझे लगता है यही वजह है कि अब वो सारे नारे बंद हो गए। अब सिर्फ नारा ये चल रहा है कि G20 देखिए, इंडिया देखिए, भारत देखिए। अब ये सब जो है सगुफे छोड़े जा रहे हैं कि अरे भारत इंडिया। अब वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि भारत और इंडिया में फर्क क्या है। अब भाजपा उसको फर्क को जो है वो खोजने में लगी है। अब और माफ करिएगा, बहुत सारे न्यूज चैनल वाले तो अब उसी खोज में लगे हैं कि भारत अच्छा है कि इंडिया अच्छा है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों एक ही नाम है, चाहे वो इंडिया कह लें चाहे वो भारत कह लें। अरे भाई, जो हमारी पोस्टेज स्टैंप है उसके ऊपर तो दोनों लिखे होते हैं ना, इंडिया भी होता है भारत भी होता है, दोनों होते हैं, उसमें क्या है? मोदी जी से मैं तो कहता हूं कि राजीव जी एक बार आप भी इंटरव्यू कर लीजिए, पूछिए ये सारे जो आजकल इंटरव्यू नहीं देते सर, आजकल इंटरव्यू नहीं देते, पहले देते थे। जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के तब दिया करते थे, आजकल नहीं देते। तो नहीं, मैं तो बोलता हूँ बहुत ऐसा मतलब एक बार होना चाहिए कि सारे पत्रकार घेर के ये कहें कि मोदी जी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। एजेंडा कोई सेट नहीं है। पार्लियामेंट, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में सोनिया गांधी जी खुद मैदान में उतरी है और उन्होंने लेटर लिखा है नरेंद्र मोदी जी को कि मोदी साहब एजेंडा क्या है, एजेंडा बताइए। तो एजेंडा किसी को नहीं पता, तो सोनिया गांधी जी ने लेटर लिखा है। लेटर लिख के एक एजेंडा उन्होंने बोला कि प्राइस राइज एजेंडा है उसको इंक्लूड कीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट एजेंडा है उसको इंक्लूड कीजिए, फॉलिंग इनकम्स एक एजेंडा है उसको इंक्लूड कीजिए, फार्मर्स आर इन ट्रबल सोनिया गांधी जी का कहना है उनको इंक्लूड कीजिए, एमएसएमईज बंद हो रहा उसको आप रोकिए, कुछ कीजिए, आप क्लीन शीट दिए चाइना को बॉर्डर इश्यू में, वो एजेंडा बनाइए, बुडानी स्कैम वो एजेंडा है, और मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस सोनिया गांधी जी का कहना है। सोनिया गांधी जी ने पूरे एजेंडा के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को खत लिखा है। क्या यह जरूरी था भरत सिंह जी इस वक्त? देखिए, सोनिया गांधी जी ने जो लेटर लिखा है, पत्र लिखा है नरेंद्र मोदी जी को,
वो 2014 में जब इनकी सरकार आई थी, 2014 से लेके 2023 चल रहा है, जितने वादे देश के प्रधानमंत्री या भाजपा ने किया था, उन सारे वादों को सोनिया जी ने उस पत्र के माध्यम से याद दिलाया कि ये सारा जो आप सेशन बुला रहे हैं, विशेष सत्र बुला रहे हैं, पहले तो आपको विशेष सत्र बुलाने के पहले आपको विपक्ष को कम से कम इतना तो बताना चाहिए कि किस विषय पे विशेष सत्र बुलाया जाए। देश का विपक्ष भी अपना एक जो है मायने रखता है, स्थान रखता है, तो उसे भी जानने का अधिकार होना चाहिए कि विशेष सत्र किस विषय पे बुलाया जा रहा है। दूसरा, जो मोदी जी आप भूल गए हैं, जो 12 बिंदु जो दर्शाया है श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 2014 से लेकर 2023 तक जो वादे किए थे, उन वादों को उन्होंने एक बार उनको कहते हैं ना कि जले पे नमक जो होता है ना, वो छिड़का हुआ है और कहा है कि ये आपने वादे किए थे और ये करना चाहिए, और इस पे विशेष सत्र आप बुला लीजिए, इस पे चर्चा हो जाए एक बार, कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर मोदी जी विश्व गुरु हैं तो विश्व गुरु तो वही बन सकता है ना कि जो बहुत अच्छा काम किया हो, जो बहुत अच्छा काम कर रहा हो, आगे चल के बहुत अच्छा काम करेगा, तो ये वही व्यक्ति कर सकता है। और इसीलिए हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पत्र लिख के, पत्र के द्वारा जो है ये सारे मुद्दे उठाए हैं। अब देखिए कि वो करते क्या है। लेकिन भरत सिंह जी, यहां पर सोनिया जी का लिखना लाजमी भी है, क्योंकि उसका एजेंडा अभी तक सेट नहीं किया गया था। क्योंकि एजेंडा मालूम नहीं है, तो सोनिया जी ने यह लिखा कि भाई अगर आपके पास एजेंडा नहीं है तो ये एजेंडा ले लीजिएगा। वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन आपको लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं, अधिवक्ता हैं, जितने भी नेता हैं, वो कभी भी कीमतों के ऊपर और नौकरियों के ऊपर कभी बात नहीं करते आजकल? ये क्या बात है? मतलब अरे भाई कीमतें बढ़ रही हैं तो बढ़ रही है ना, सबको मालूम है। आप क्या कर रहे हैं उनको नीचे लाने के लिए, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। भरत सिंह जी, देखिए राजीव भाई, भाजपा और देश के प्रधानमंत्री देश की जनता का तेल निकालने बैठे हैं जी। देश की जनता का तेल निकालने के लिए बैठे। भाजपा के प्रवक्ता नेता का तो बात ही छोड़ दीजिए, भाजपा के मुख्यमंत्रियों की हालात ये है कि वो एक शब्द जो है वो टीवी पे आके नहीं बोल सकते मोदी जी के खिलाफ। हाँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे दिखा एक ताकतवर नेता भाजपा में। 2 दिन पहले मैं एक वीडियो देखा नितिन गडकरी जी का कि देश के प्रधानमंत्री, विश्व गुरु, सबसे ताकतवर नेता मंच पे सबको नमस्कार करते हुए जा रहे हैं, और नितिन गडकरी जी ने उनकी तरफ देखा तक। कम से कम खुददार नेता इसे कहते हैं, और खुददार नेता अगर भाजपा में अगर 20 नेता और अगर ऐसे पैदा हो जाए ना, तो मोदी जी को समझ में आ जाएगा कि पार्टी कैसे चलती है। तानाशाही से पार्टी नहीं चलती है। हर नेता को, हर कार्यकर्ता को, हर पदाधिकारी को पार्टी के फोरम पे अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। मन की बात तो आप कर लेंगे, अपनी मन की बात बता देंगे, लेकिन पार्टी के नेताओं की, देश की जनता की मन की बात कब सुनेंगे? 9 साल हो गए, 9 साल में सिर्फ आपने मन की बात कही है, लेकिन देश की जनता के मन की बात आपने कभी नहीं सुनी। आपने पार्टी के नेताओं के, अपने पार्टी के नेताओं की मन की बात कभी नहीं सुनी। तो इसे क्या कहते हैं? इसे विश्व गुरु कहते हैं, इसीलिए विश्व गुरु बनाया जा रहा है। सर, नितिन गडकरी जी को आप क्यों मुश्किल में डाल रहे हैं जान करके? बिकॉज भाजपा वाले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में मतभेद सामने लेके आए। मतलब अपना काम कर रहे हैं, सबसे अच्छे मंत्री हैं वैसे। बाय द वे, ये भी आपको बात बताते हैं, जितने भी सर्वेक्षण आए हैं उसमें ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो वो नितिन गडकरी। और आप तो मतलब चलिए कोई बात नहीं, अगर आप जैसे दोस्त हो तो फिर दुश्मन की क्या जरूरत है। तो लेकिन ये बताएं सर, ये बताएं कि अभी भारतीय जनता पार्टी जो है और बाकी जितने भी लोग हैं वो सब लोग अब G20 की बात करेंगे, डेली डिक्लेरेशन की बात करेंगे। नो डाउट इट इज एन अचीवमेंट, बहुत अच्छी अचीवमेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये G20 से अभी तक भारत को वास्तविकता में क्या फायदा हुआ है, ये आपको मालूम पड़ा है भरत सिंह जी? देखिए, G20 से ये तो मालूम पड़ा, पता चला। जी बोलिए सर। G20 से ये तो मालूम पड़ा, G20 से ये पता चला कि मुंबई में जब G20 हुआ था तो मैंने देखा पूरे मुंबई में जब गाड़ी लेके घूम रहा था तो सब जगह पर्दे लगा लगा के छुपाए गए थे, चारों तरफ पर्दों से ढक दिया गया था।
कहीं बैनर से ढक दिया गया था। हमारे देश की खूबसूरती, हमारे कहते हैं ना कि विश्व गुरु है भाई, तो जब विश्व गुरु हमारे देश के हैं तो जो वास्तविक चीज है उसे दिखाइए ना। उसको आप पर्दे में कब तक ढकेंगे? पर्दे में ढकने से कुछ होता है क्या? पर्दा पर्दा है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो ये पोजीशन है G20 में जो सारे नेता आए हैं। आप बताइए मुझे, हमारे देश का ही पैसा खर्चा हो रहा है ना। मुझे लगा कि मैं आज देखा कहीं कि मतलब इतना पैसा खर्चा हुआ है G20 पे, उसका आखिर अब पता चलेगा बाद में कि इसका निकला क्या निराकरण क्या इसका निकला, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा के पास विकास के नाम पे या देश की जनता को कुछ देने के नाम पे कुछ बचा नहीं है। तो ये सब एजेंडा अब पूरे चुनाव तक, 8 महीने चुनाव को लोकसभा के बचे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे एजेंडे आएंगे। तो भरत सिंह जी, अभी जो जनसंपर्क यात्रा आपकी चल रही है पूरे महाराष्ट्र में जी, मतलब वर्षगांठ है भारत जोड़ो यात्रा की, तो जो जनसंपर्क यात्रा जो है उसके बारे में जरा कुछ बताएं। कहां तक पहुंचे, क्या हुआ, कितने लोगों से अभी तक मिल चुके हैं लोग, उसके बारे में कोई रिपोर्ट आई होगी आपको जरूर। जी देखिए, जन संवाद यात्रा जो हमारे नेता जन संवाद यात्रा, नाना पटोले जी, नाना पटोले जी के नेतृत्व में, महाराष्ट्र अध्यक्ष हमारे जो नाना पटोले जी, उनके नेतृत्व में जो जन संवाद यात्रा इस समय निकली हुई है, बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिल रहा है पूरे महाराष्ट्र में। आप नांदेड़ में चले जाइए, मराठवाड़ा में, वहां पे अशोक चौहान जी देख रहे हैं। आप नागपुर में चले जाइए तो वहां पे जो है हमारे जो अध्यक्ष नाना पटोले जी हैं वो दिख रहे हैं। विरोधी पक्ष नेता जो अभी बने विजय वट्टीवार जी वो दिख रहे हैं। आप आ जाइए अगर उत्तर महाराष्ट्र में, तो वहां पे जो है हमारे नेता बाला साहब थोरात जो है, उनके पास कमान है। तो ये एक तरह से देखा जाए, आप फिर उसके बाद आ जाइए, अगर आप यहाँ आते हैं कोंकण की तरफ और थाना पालघर अगर लेते हैं न्यू बॉम्बे, तो वहां पे जो है नसीम खान जी के नेतृत्व में इस तरह से जो जन संवाद यात्रा जनता के बीच में हम सब जब लोग जा रहे हैं, तो जनता के मन में एक रोष है, आक्रोश है, और वो कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ है। जनता को ये, महाराष्ट्र की जनता को ये कतई नहीं पसंद आ रहा है कि जो आज राजनीति हो रही है महाराष्ट्र में, जिस तरह से तोड़फोड़ हो रहा है महाराष्ट्र में, जिस तरह से किसान परेशान है, जिस तरह से प्याज का उनको जो है दाम नहीं मिल रहा है, टमाटर के 200 बिकने के बाद में भी किसानों को भाव नहीं मिला, ये सारे चीज, कपास वाले जो कपास के किसान है वो परेशान है, बारिश ने तो उस पर और भी जो है गजब ढा दिया। तो ये सारे चीजों के खिलाफ जनता एक तरह से महाराष्ट्र की लामबंद हो रही है, सरकार के खिलाफ एक बिगुल फूंक दी है। और ये देखिएगा कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में, जब यहाँ पे विधानसभा का चुनाव होगा, तो महाविकास आघाड़ी की जो हमारी युति है वो एक मजबूत और बम्पर सीटों से हम सरकार बनाएंगे। भरत सिंह जी, अब आप, क्योंकि आपने बात करी दी है वो, और आपने जो रिस्पांस मिल रहा है उसके बारे में बात करी, मराठा आरक्षण के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि सोमवार को शायद GR निकल रहा है मराठा आरक्षण के लिए, तो क्या ये असलियत है या एक लॉलीपॉप है? सर बताएं प्लीज। देखिए, लॉलीपॉप सरकार तो दे रही है। केंद्र में सरकार किसकी है भाई? नरेंद्र मोदी जी की है जी। 50% के ऊपर 50% के ऊपर आरक्षण जब तक केंद्र नहीं बढ़ाएगा, जब तक इसको हाउस में नहीं लाएगा, तब तक इस पे कुछ किया नहीं जा सकता है। तो देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों बैठे हैं भाई? देश के प्रधानमंत्री को, और भाजपा, यहाँ भी शासन भाजपा का है ना, वहां भी शासन भाजपा का है। मराठा आरक्षण अगर 2 साल छोड़ दिया जाए तो देखा जाए 2014 से लेके आप 2023 तक तो भाजपा ही है ना सरकार में। तो जब आप दोनों जगह सरकार में हैं, तो आप इस पे जो है इसको 50% से ज्यादा कोटा क्यों नहीं कर रहे हैं? करके उनको भी आरक्षण दिया जाए बिना किसी छेड़छाड़ के। अगर मराठाओं को भी अगर आरक्षण मिलता है और जो उनकी मांग है, तो क्या बुरा है इसमें? तो कहीं ना कहीं भाजपा ये चाहती नहीं है, अगर उसकी देने की इच्छा शक्ति नहीं है, और इसी वजह से जो है आप देखिए लॉलीपॉप दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये GR जो है ये भी सुप्रीम कोर्ट के टेस्ट में फेल हो जाएगा जैसे पहले फेल हुआ है। जब तक संसद में विशेष कानून नहीं लाया जाएगा,
इसको आरक्षण को नहीं बढ़ाया जाएगा। जी सुनाई जी, सुन रहे हैं सर, वी कैन हियर यू, वी कैन हियर यू। भरत सिंह जी, आपकी आवाज आ रही है। जब तक आप संसद में विशेष विधेयक बिल नहीं लाते इस आरक्षण के मुद्दे पे, इसको नहीं बढ़ाते हैं, तब तक जो है ये कोर्ट में नहीं टिकेगा। करेक्ट प्रदीप जी। भरत सिंह जी, जनरल डायर कौन है? ये बार बार संजय राउत, आपके जो इंडिया के घटक दल है शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे ग्रुप पूछ रहे जनरल डायर कौन है? लाठी चार्ज का आदेश किसने दिया? जनरल डायर कौन है? आज जितने पुलिस वाले प्रशासन के लोग बहुत सारे सस्पेंड हो गए। राज ठाकरे जी वहां पर गए थे, बोले कि हमें प्रशासन के लोगों को या पुलिस वालों पे नहीं होना चाहिए, इनके पीछे जो चार्ज बोले थे, जो जिसने इशारा दिए लाठी मारने का, उनको माफी। तो इस प्रकार जो हुआ वो किस प्रकार से देखते हो? क्या आप भी यही मांग कर रहे हो कि जनरल डायर कौन है? भरत सिंह जी, देखिए, इतनी बड़ी घटना घटती है महाराष्ट्र में, मराठा समाज के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अगर कोई व्यक्ति बैठा है, वो भी शांति से बैठा है, और उसके बाद अगर लाठीचार्ज होता है, तो नामयार जी बिना ऊपर के आदेश के लाठीचार्ज कोई पुलिस नहीं करती है। उनको क्या पड़ी है? उनको क्या पड़ी है कि अपने भाइयों पे लाठीचार्ज करें, अपने बहनों को मारे? उनको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, जब तक उनको प्रेशर नहीं आता। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जनरल डायर है कौन, किसने आदेश दिया? क्योंकि बड़े अधिकारी या बड़े नेता के आदेश के बगैर हो नहीं सकता है, तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय किसके पास है? इसका जवाब तो देवेंद्र फडणवीस को देना चाहिए, या तो जो है मुख्यमंत्री शिंदे जी हैं उनको देना चाहिए कि आखिर किसके आदेश पे ये लाठीचार्ज हुआ है। लेकिन लाठीचार्ज क्यों हुआ होगा सर, ये तो बता दीजिए। लाठीचार्ज आखिर क्यों हुआ होगा? ये तो मतलब राजनीतिक तौर पे आत्महत्या करने वाली बात हो गई ना, कि अगर आप मराठा आरक्षण पे, उपोषण पे जो लोग बैठे हैं उन पर लाठीचार्ज करें। सर, ये एक जांच का विषय है। एक बिल्कुल, बोलिए बोलिए सर। मैं राजीव भाई हम भी यही चाहते हैं, ये जांच का विषय है। ये जांच होनी चाहिए, ये जांच होनी चाहिए कि आखिर किसके आदेश पे इसमें किसको फायदा और किसको घाटा हुआ, ये जरूरी है। लेकिन अगर कोई अपनी क्या मांग नहीं इस देश में मांग सकता है क्या? आज अगर मराठा आरक्षण के लिए बैठे हैं, कल हम भी बैठ सकते हैं, कल आप भी बैठ सकते हैं, अपनी मांग नहीं मनवाएंगे, यानी उसके बाद आप लाठीचार्ज कर देंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि लाठीचार्ज जब भी पुलिस करती है तो अपने वरिष्ठ के आदेश पे ही करती है। उस वरिष्ठ से ये पूछा जाए कि आपको किसने आदेश दिया था। ये तार कहीं ना कहीं वो मंत्रालय से आएगा, और जो मंत्री, संबंधित मंत्री ने आदेश दिया था उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। भरत सिंह जी, आगे बढ़कर हम लोग बात करते हैं। बीजेपी का आरोप है कि सनातन धर्म विरोधी है, घमंडिया गठबंधन सनातन धर्म के विरोधी है। कहता है कि राहुल गांधी मोहब्बत के दुकान के बारे में बात करते हैं, प्यार और मोहब्बत के दुकान के बारे में बात करते हैं, मगर नफरत के पूड़ी जो बांट रहे हैं वो एक सनातन धर्म को खत्म करने की बात जब आपके इंडिया के घटक जूनियर स्टालिन बोलते हैं, कांग्रेस का रिएक्शन क्या है? यहां पर वसुधैव कुटुंबम की बात कर रहे हैं और आप सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कर रहे हो। अगर कुछ खामियां है तो उस खामियां पर आप बोलिए। आप पूरे सनातन धर्म को वायरस के साथ, कोविड के साथ, मलेरिया, डेंगू के साथ और बोले इसको खत्म करना चाहिए, तो ये कहां तक सीमित है? इसका विरोध तो खुद उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी कहा कि 90% हिंदूज है इस देश में, और जूनियर स्टालिन को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे देखते हो, क्या घमंडिया सरकार सनातन धर्म विरोधी है? भरत सिंह जी, देखिए, ये स्टालिन के पुत्र का अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है, ये कांग्रेस पार्टी का मत नहीं है, ये इंडिया का मत नहीं है। इंडिया में जो भी गठबंधन में शामिल लोग, जितने भी नेता हैं, ये उनका अपना व्यक्तिगत, उनका कोई मत नहीं है। ये स्टालिन के पुत्र का अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है। हमने पहले ही कहा, पहले दिन कहा, हमने उससे, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। अगर कोई कहता है
तो ये आप उनसे पूछिए। दूसरी चीज, भाजपा के नेताओं ने कितनी बार कितनी दफा जो है आरोप लगाए, बार बार बोला है, लेकिन उस विषय पे कोई ना बात करता है, ना मीडिया बात करती है, ना कोई दिखाता है। तो ये देखिए, मैं समझता हूं कि मैं भी हिंदू हूं, सनातनी धर्म वाला हूं, तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति आजाद है इस देश में अपना अपना जो है धर्म का पालन करने की। जी। किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म जाति को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। तो स्टालिन के पुत्र जी को यह समझना चाहिए कि कम से कम कोई भी, आपका अपना धर्म हो सकता है, आप अपने धर्म को मानिए, बाकी के जो लोग हैं वो अपने धर्म को मान रहे हैं, लेकिन आप अगर किसी समाज के विषय पे इस तरह से बोलेंगे तो वो ठीक नहीं। जी जी। तो एमबीए का किस प्रकार से होगा भरत सिंह जी? बिकॉज हम लोग जिस प्रकार से देख रहे हैं, कोई निर्णय नहीं हो रहा है। जहां शिवसेना का जो फूट हुआ उसमें कोई निर्णय ठोस नहीं हो रहा है। यहाँ शरद पवार जी एनसीपी फूट गया, वहां पर कुछ निर्णय नहीं हो रहा है। और अजित पवार, सुप्रिया सुले ने ये आगे जाके कहा कि उनको डेट्स, जब प्रफुल्ल पटेल ने कोई डेट बोला कि इस डेट में कुछ होने वाला है, साइन सिंबल सब अजित पवार जी के पास जाएंगे। तो आप इसको कैसे देखते हो? फिर संजय राउत जी आगे जाके कहता है कि हमारे जो स्पीकर है असेंबली के, वो गोविंदा में नाच रहे थे, वो नाचना ठीक नहीं है। तो ये सब कैसे देखते हो भरत सिंह जी, आलोचना जिस प्रकार से हो रहा है? देखिए, एक चीज समझिए नाम्बिया भाई, आज चुनाव के नतीजे आए 7 राज्यों में, 7 सीटों पे जो चुनाव हुआ जी, वो नतीजे आपको सब कुछ बताएगा कि टीम इंडिया की मजबूती और टीम इंडिया के साथ आने पे हमने 2 जगह, उत्तर प्रदेश का ब्रांड कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, घोसी सीट पे 47,000 वोटों से ज्यादा हम जो है मार्जिन रख के चुनाव जीते। जी। जहां पे उनकी अपनी ताकत, मतलब कहते हैं कि भाई योगी और मोदी के आगे तो कुछ बात ही नहीं हो सकती है, सीट तो सब हम ही जीतेंगे, पूरा चुनाव आप जीतेंगे। आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि 7 सीट में से 2 सीट जो है भाजपा की थी, वो भी हमने जीता, हमने लिया। तो आगे आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में आपको दिखेगा कि जो टीम इंडिया के अलायंस है, देखिए हम जो है बेंगलोर में 26 थे, मुंबई पहुंचते पहुंचते 28 हो गए हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगली मीटिंग हमारी जो है वो है भोपाल में होने वाली है। तो मुझे लगता है वहां पहुंचते पहुंचते हम 30 हो जाएंगे, 30 की संख्या हो जाएगी। तो हमारा कुनबा जो है वो बढ़ रहा है, और ये बढ़ते हुए कुनबे से मोदी जी और भाजपा पूरी तरह से घबराई हुई है। इसलिए बार बार जो है मोदी जी घमंडिया का सब इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब वो ठीक है, करने दीजिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ये पता है कि भारत और इंडिया और भारत एक है। हम मिलके अपने देश की जनता का कैसे भला हो, हम उस विषय को सोच रहे हैं। अब ये एजेंडा धीरे धीरे तय होगा। एजेंडे में हम लोग किस एजेंडे पे लड़ेंगे, क्या क्या हमको कैसे लड़ाई आगे लड़ना है, ये सारा तय हो आएगा। पहले तो राजीव भाई आप जानते हैं कि पहले तो ये था कि कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। अब तो एक प्लेटफॉर्म पे आके और हम अपना काम भी शुरू कर दिए, और उसका नतीजा 7 जो विधानसभा का सीट का चुनाव हुआ उसमें नतीजा दिखा आपको। जी, दुरुस्त बात। लेकिन ये नतीजे जो आए, परिणाम जो आए, आपके लिए तो बहुत एनकरेजिंग है साहब। वो जो त्रिपुरा की अगर 2 सीटें निकाल दी जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को तो काफी धक्का लगा है, क्योंकि एक तो घोसी की सीट वहां दारा सिंह चौहान साहब को वो अपनी पार्टी में ले आए थे, और वेस्ट बंगाल में जो उनकी खुद की सीट थी वो टीएमसी ने जीत ली है, और केरल में तो ओमन चांडी साहब के जो सुपुत्र हैं चांडी ओमन, वो जीत के आ गए हैं। कांग्रेस की जीत हुई है केरल में। तो मतलब आपके लिए तो काफी अच्छा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी ने उत्तराखंड की अपनी सीट जीती है, जो उन्हीं की सीट थी वो उन्होंने जीती, ये उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आगे चल करके ये बता दीजिए, क्योंकि आज की तारीख में जिस प्रकार प्रचार हो रहा है मोदी जी का, जो प्रदीप जी ने अभी कहा विश्वगुरु, दूसरा G20, तीसरा अभी ये कहेंगे कि भाई यूक्रेन और रशिया के ऊपर भी एग्रीमेंट कर ली हमारी वजह से यूएसए और रशिया के बीच में, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन सब चीजों का कोई प्रभाव पड़ेगा भारत की जनता पर? देखिए, ये बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है। मोदी जी और भाजपा ये समझती है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है,
तो वो आपको घोसी वाले सीट पे समझ में आ गई होगी। जी आपके साथ आज ये 107 जो चुनाव के नतीजे आए सीटों के, इससे आप समझ गए होंगे कि देश की जनता का मूड क्या है। और ये मैं मानता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी की नहीं, मैं समझता हूं टीम इंडिया की जीत है। हम सभी नेता मिलकर चुनाव हर जगह लड़ेंगे और आगे चल के देखिएगा 2024 में फिर से टीम इंडिया का ही प्रधानमंत्री बनेगा। यानी राहुल गांधी। नहीं, इस विषय पे मैं 5 मिनट में करता हूं। इस विषय पे देखिए हमारे सभी बड़े नेता बैठेंगे और उस पे डिसाइड करेंगे कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। भरत सिंह जी, आप बोल रहे थे कि आप बढ़ेंगे 30 तक पहुंच जाएंगे, मगर यहाँ पर अपना जेडीएस देवेगौड़ा और बीजेपी एक साथ युति हो गए कर्नाटक में, दोनों एक साथ लड़ने वाले हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, तो वहां पर भी बढ़ोतरी हो रहा है भरत सिंह जी, बहुत सारा बढ़ोतरी हो रहा है। कुछ नहीं, देखिए देवेगौड़ा जी तो मुख्यमंत्री बनने वाले थे चुनाव के पहले, और क्या हश्र हुआ देवेगौड़ा जी की पार्टी का, जेडीएस का हुआ, सब लोग ने देखा। आगे क्या होगा वो तो सब जानते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं कि टीम इंडिया बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, और ये 8 महीने के अंदर आते आते जब ये 2-4 मीटिंग और बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि करीब 37-38 पार्टियां हमारे साथ आ जाएंगी। Right, thank you so much, sir. Bharat Singh ji, thank you so much. Thank you. Always a pleasure talking to you. Namaskar, sir. Thank you. Jai नमस्कार। Hind, Jai Bhavani, Jai Shivaji. Thank you so much. That was Mr. Bharat Singh, and I think he was in a hurry to leave. I don't know why. I mean, he probably spoke more than half an hour, so Yeah, probably, and maybe he didn't have anything more to say. Yeah. But why was he not wearing his earpiece? I still can't figure that out. And why? Anyway. But still, he made some very interesting points, including the fact, of course, that the next Prime Minister will be from the India alliance. It could be anybody. It could even be one of my favorite politicians, Mamata Banerjee. Mamata Banerjee becomes the Prime Minister of India. Wow, that would be really something. But I don't expect Mr. Modi to why? lose. Sir, My is that- problem is, I don't expect Mr. Modi to lose 2024, unless and until the BJP does something really stupid. And why should they do that? Ji Pradeep ji, aap kuch bol rahe the. Boliye. Congress ruled opposition, Congress led opposition. That was Mallikarjun Kharge's call. As on today, Congress is in multi-states. You don't have any other party within the India alliance who has more than one state with them. If you DMK, Tamil Nadu. If you talk about Mamata, she's West confined Bengal. over there. Only West If Bengal. Nitish Kumar is only confined to Bihar, and that also is an alliance. So how can Congress will always push for Their own Congress- candidate. Yes, for their own candidate. Why will they? Though Rahul Gandhi said we are ready to make sacrifices. That's what Rahul Gandhi said. But is it? I mean, who is going to do it? Because I think Congress is going to perform very well. The way they are planning everything. Now the G20 session here is going on, and Rahul But Gandhi I is tell out you in what, Belgium, and he's trying to tell. the question I asked Mr. Bharat Singh was that is the G20 it's a magnificent achievement, first of all, for India, to get everybody to agree to have the Delhi Declaration. By the way, is a great document. But will it have an impact on the elections? I don't think so. I don't think anybody in India is really bothered about ठीक है G20 में आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, we love you very much, you are Mr. Modi, you are a great guy, but hey, what about my gas cylinder? What about my tomatoes? What about my potatoes and my onions? And that's very important. So Sir, what do you think? Do you think the G20 achievement will have an effect? Sir, if you're talking about the opportunities it is going to create, now you're talking Gee. about corridor, you're talking about economic integration between India, West Asia and Europe. You're talking about probably a belt or a road that goes across from the West, from India to Middle East, and then to Europe. You're talking about that. You're talking about a corridor, India, Middle East, Europe. No, you're talking about... So that's a counter to the Chinese Belt and Road Bilkul, Initiative, yes. Look BRI. So you've already worked Look at the opportunities being created for Yes. our businessmen, our That's people right. who are making roads in collaboration, probably with. So, and transport absolute. and transport companies. Yes. And business. Bilkul, sir. You're talking about, India is taking a giant leap. India is Yes. taking a giant leap. Yes. Mr. Modi has been able to get this G20, now the African Union inside, and look at the business opportunities he's talking about. He's rallying businessmen, he's putting in all the state leaders, getting a consensus on all issues. He's getting a consensus on war also, that nobody will physically use force
in a war, diplomatic relations is the most important thing. He stresses that you need to solve problems in a diplomatic way. Yes. What is concerned, he's talking about diplomacy, he's talking about a corridor, he's talking about integration of business right till US. All right, now as far as Mr. Lakshman Hage is concerned, we're trying to get in touch with him. There seems to be a bit of a network problem with his phone, so he's trying from the other phone. I think we should have him on in just another 5 minutes. In the meantime, if you haven't subscribed to the channel already, please do so. आप चैनल को सब्सक्राइब करें and please do send in your comments. प्रदीप जी, what you are saying is absolutely true. आज की तारीख में अगर मान लीजिए जो अभी प्लानिंग हो रही है, जो पहले अभी जो सड़क बन चुकी है, हम लोग बांग्लादेश के थ्रू जा चुके हैं, म्यांमार के थ्रू जा रहे हैं, बहुत ही जल्दी there will be a corridor from Delhi right up to Bangkok, Delhi, Lucknow, Calcutta, Dhaka, Rangoon, right up to Bangkok. You can motor down. I mean, that will be fantastic. Something similar is being planned for the other side as well. The only problem that is going to arise is what do you do about Pakistan? How do you do that? I mean, if you have a world order that is totally with this particular project, I mean, the world together takes care of the little problems that arise over there. Unless it is a petty problem. Unless you take a sea route up to that port in Iran, Exactly. and from there you motor down. I mean, Bilkul, that's it. Bilkul. We've done that before. आपको याद होगा पहले जब अफगानिस्तान को हमें गंदम भेजनी थी, जिसको गेहूं कहते हैं, गेहूं और चावल हमें भेजने थे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान ने मना कर दिया था. So we sent it via the port in Iran and then by rail. In fact, the Indian Railways actually built a railway line right up to Afghanistan. In fact, Afghanistan saw trains for the first time after the Indian Railways built them. So all I'm saying is there is nothing which cannot be overcome. Sir, देखो, the Modi's report card has everything in it. It got macro issues. You talk about the fifth biggest economy, it starts from there. Then it says the biggest digital payment infrastructure. And when he says that I've got the biggest digital payment infrastructure in the whole world, he's not wrong. He's right. He's got it. It's direct beneficial transfer as on today, the government to the people, direct jo connect hai. It has never been before. It's direct. He's touching the bank accounts of the most poorest of poor, and all subsidies are flowing directly to the accounts. The greatest, the digital revolution जिसको आप बोलते हैं. और दूसरे, if you talk about warfare, surgical strike, Balakot strike, if you talk about Ram temple, इससे पहले, as we always discuss, 550 साल के बाद अगर पुनर्निर्माण हो रहा है राम मंदिर का, you know, who can deny the very fact it has happened? Then after that, if you talk about Article 370, the biggest compliment comes from your opposition. If Omar Abdullah talks about how good the 370, whatever happened, he says, at least I can vouch the very fact that the businessmen are feeling secure conducting their business. Yes. Service industry is the biggest. Tourism is the biggest industry. Biggest footfalls. Largest footfalls. Yes, largest footfalls. And he says the businessmen, the hotel industry is feeling safe. The businessmen with the service industry are feeling safe. Security has improved. Now, if the opposition, so that's an achievement. It has never been done since independence. If you see, one party always said that it's not possible. They said 100 ways it can't be done. And in fact, his father himself, Farooq Abdullah, said, "Agar ye ho gaya, to main sannyas le lunga." And they also said there'll be blood on the streets. Yeah, and well, God knows what else. yes. So these things with the Congress and its allies said impossible. They've he has done made it. it impossible. He's made it possible. Now, triple talaq. Now, आप कुछ भी कहें, a social evil. Pradeep ji, As verbal triple talaq. Yes, That's verbal been triple banned. talaq. Yes, That's verbal been triple banned. talaq. And nobody Now, else had the guts to do it. So, if they compare it, now the BJP social media is comparing with Rajiv Gandhi, what he tried to do and what he did in the Shahbano case. What he should not have done. Yes. What Mr. Modi did and that is what he says. Rajiv Gandhi. In fact, he had no business interfering. Yes. By the way, Shahbano he was just a Supreme Court judgment. by the strength of the parliament. That and Rajiv Gandhi is talking about UPI payments, which Mr. Modi says 100% direct beneficiary transfer. That's it. 100%, no middleman. He's eliminated the entire middleman. It is Mr. Modi to the last man, the common man, the poor and downtrodden. Now, what you can say, and if you see the macroeconomic policies, micro, आप घर दे रहे हो, भले सबको नहीं मिला, opposition का आलोचना है कि घर नहीं दिया, मिल तो रहा है, at least एक state
एक लीडर, एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से honest effort is on that I will provide. लाखों की तादाद में लोगों को घर मिले हैं। Exactly. मिले हैं भाई, बिल्कुल है। उसमें you can't deny that। तो मिले। इसके बीच में वो स्वच्छता अभियान कर रहे हैं कि आप अपना घर को स्वच्छ रखिए, अपने और दूसरी चीज क्या है? Now this is something which I find very funny. This is something which I really need to say this over here. Every time we talk to any Congress spokesperson, he always comes out with, देखिए आप कह रहे हैं कि गरीबी रेखा से हमने इतने लोगों को ऊपर उठा दिया, अगर गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया तो 80 करोड़ लोगों को आप खाना मुफ्त में क्यों दे रहे हैं? अरे खाना मुफ्त में क्यों दे रहे हैं? मतलब I don't understand this. You are available. Let's be very clear. This is, by the way, a direction of the Supreme Court given 10 years ago. 10 साल पहले Supreme Court की डायरेक्शन है, प्रदीप जी आपको याद होगा, बिल्कुल कि all that food which is lying rotting in your warehouses, why didn't you distribute it among the poor? And I still remember, not even 10, 15 or 16 years ago, Mr. Sharadpawar was agriculture minister, and he said we do not have the wherewithal to do so. Mr. Modi has actually done it. He has actually distributed food to the poor. How can you object to that? मेरी ये समझ के बाहर है कि मतलब अगर लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है उसके ऊपर भी आपको ऑब्जेक्शन है, अजीबोगरीब मसला है। अरे भाई, what does that have to do with employment? If a person is getting food free of cost and he's also employed, look at the amount of money that person is saving on food. मतलब I don't understand this. If Mr. Modi says right from 1st January 2023, I have been giving 87,500 tap connections every day. Yes. 87,500 tap connections every day. तो I mean, at least उसका आधा तो करते रहेंगे. Look at the commitment towards giving water in every house. हर घर नल से जल. At least वो स्लोगन किया है, लोगों से बातें कर रहे हैं. अब विरोधियों का कहना है, it is good also they are pointing, नल तो है, पानी नहीं है, शौचालय में पानी नहीं है. आप I think we've got Mr. Hake finally. आप हर घर शौचालय बोल रहे हो, शौचालय कहाँ पर है? तो the opposition is raising issues. It should. But that's his job. That's the job of the opposition. But look, the people's ultimately is going to say, is there a clear-cut intent, a honest intent on behalf of the Prime Minister? जो poor, गरीब, poor, downtrodden है, उनका घर में मैं इस सुविधा को पहुंचाऊं, चाहे वो आयुष्मान हो, चाहे उजाला हो, चाहे शौचालय हो, चाहे पानी हो, चाहे रिजर्वेशन हो. बिल्कुल. Let's ask Mr. Hake. Yes. Let's ask Mr. Hake. लक्ष्मण हाके जी नमस्कार. नमस्कार बोलिए. नमस्कार लक्ष्मण हाके जी, स्वागत है आपका नेशन नाउ में. लक्ष्मण हाके साहब has had a haircut. लगता ही नहीं कि कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम है आपका. हाँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कनेक्शन तो बहुत जबरदस्त लग रहा है. लक्ष्मण हाके साहब ये बताएं कि मराठा रिजर्वेशन के लिए सरकार ने कहा है कि वो जीआर इशू कर रहे हैं मंडे को. इस जीआर का क्या मतलब है? ये वास्तविकता में लॉलीपॉप है कि कानूनन जीआर है? बताएं सर. मैं तो अभी स्टेट बैकवर्ड कमीशन मेंबर हूं जी, और एक कमीशन मेंबर होते हुए मेरी राय अलग रहेगी, और मैं शिवसेना का प्रवक्ता ये ध्यान में रखते हुए नहीं आपके साथ बात करूंगा. मराठा रिजर्वेशन के बारे में, मराठा कम्युनिटी को अगर संवैधानिक रिजर्वेशन चाहिए जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ, दोज आर सोशली बैकवर्ड्स, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए मुझे इस गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन होगा, ये मुझे नहीं लगता ये लॉलीपॉप ही लगता है, और इससे कोई होगा नहीं. ये मेरी राय है. नहीं होगा? क्यों नहीं होगा सर, बताएं जरा प्लीज. साहब, अगर कुणबी ये सर्टिफिकेट मराठा कम्युनिटी को कैसे इशू कर पाओगे आप? जो कुणबी है वो तो ऑलरेडी ओबीसीज में है. करेक्ट. हाँ, तो मराठा कम्युनिटी को कुणबी ऐसा नामकरण करके कैसे रिजर्वेशन मिल सकता है? ये बात है. So which means ये ऑब्जेक्शन पहले भी उठी थी. इसका मतलब ये हुआ, अगर आप कुणबी सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं मराठवाड़ा में रहने वाले मराठाओं को, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुणबियों को, जो पहले कुणबी है, उनकी संख्या में बहुत तकलीफ होने वाली है. इसका मतलब रिजर्वेशन में तकलीफ होने वाली है. लक्ष्मण आगे साहब, ये सिर्फ कुणबी के बारे में नहीं होगा. ये तो इस महाराष्ट्र की आधी लोक संख्या जो ओरिजिनली ओबीसीज में है, VJNT है, ये सारे लोग ओबीसीज में इंक्लूड है.
अगर मराठा कम्युनिटी अगर अंदर आएगी, इतनी बड़ी कम्युनिटी, और मैं अभी बोलूंगा नहीं ज्यादा, मगर ये अगर ओबीसी में आएगी तो आरक्षण बचा कहाँ? जी दुरुस्त बात। ना आगे साहब, प्रॉब्लम यह है कि मराठा कम्युनिटी खुद कह रहा है कि कुणबी का सर्टिफिकेट, इन्हें सब जगह से विरोध हो रहा है। मराठा बोल रहे हैं कि हम कुणबी, हम आप नहीं इशू कर सकते सर्टिफिकेट। बहुत सारे जो गुट है मराठा समाज के अंदर, भुजबल साहब वगैरह ओबीसी की जो बड़े बड़े नेता हैं बोले कि आप हमारे कोटा से डाइल्यूट नहीं कर सकते, हमारा कोटा कोटा ही रहेगा, उसको आप डाइल्यूट मत करो। बीच में विदेटीवार साहब ने पहले बोले कि ओबीसी कोटा में ले लो, फिर विदेटीवार दूसरे दिन फिर पलटी खाए और बोले कि नहीं 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 ये नहीं होना चाहिए। आगे साहब, हाउ डू यू सी इट? ये बहुत कंफ्यूजन चल रहा है सब जगह। साहब मैं एक स्टेट बैकवर्ड कमीशन का मेंबर होते हुए, आरक्षण किसको दिया जाता है, आरक्षण का उद्देश्य क्या है, आरक्षण का मतलब क्या है, ये सब चीजें ये पॉलिटिकल पार्टीज है, ये पार्टीज और लीडर्स, इन्होंने सब इनका मतलब एक पॉलिटिकल एंगल से सब देखते हैं। ये देखो हमारा संविधान जिस दिन से शुरू हो गया इस देश में, दोज आर सोशली बैकवर्ड, जो डिप्रेस्ड है, जी जो सैकड़ों सालों से हमारे सिविलाइजेशन, एजुकेशन, इकोनॉमिकल सिस्टम, ये सब जो हमारा देश, हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सब लोगों को सामाजिक न्याय दिलवाना चाहता है। और सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए ये रिजर्वेशन का ये इस्तेमाल करने का घटना और घटनाकारों का ये उद्देश्य था। मगर देश को आबादी मिलने के बाद, देश को स्वातंत्र मिलने के बाद, इस देश में जितने भी योजनाएं थी सामाजिक न्याय दिलवाने के बारे में, वो सोशली बैकवर्ड लोगों को रिजर्वेशन देके उनका प्रतिनिधित्व सस्टेन करना ये उद्देश्य था। तो अभी क्या हो गया है, 2023 में हर एक आदमी ऐसा बोलता है कि आरक्षण मतलब रोजगार पाना, आरक्षण मतलब हमारी इकोनॉमिकल तरक्की करना। ये तो रिजर्वेशन का पैरामीटर नहीं हो सकता है। रिजर्वेशन का पैरामीटर सोशली है, सोशल, जो जिस कम्युनिटी में जन्म लेने के कारण वो एजुकेशन, सिविलाइजेशन और आर्थिक तरक्की करने में, उस कम्युनिटी में जन्म लेने के कारण वो कर नहीं रहा है, उन लोगों को प्रमोट करने के लिए रिजर्वेशन दे दिया है। मगर हमारे पॉलिटिकल लोग इसका वो पॉलिटिकल एजेंडा बना के हमारे महाराष्ट्र में हर एक जगह पे जो कायदा में कायदा नहीं बोलता है, जो 2000 सोशली बैकवर्डनेस प्रूव नहीं कर पाते हैं, 2000 ये डोमिनेटिंग कास्ट है, उनका जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, उनका कोऑपरेटिव सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है, उनका सिविलाइजेशन में कंट्रीब्यूशन है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के विधानसभा में, हर विधानसभा में सबसे ज्यादा 180 के आसपास मराठा कम्युनिटी के लोग चुन के आते हैं। एमपी सबसे ज्यादा मराठा है। हमारे महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर मराठा कम्युनिटी के हैं। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन के बारे में 1600 पेजेस का रिजल्ट दिया है, मतलब जजमेंट दिया है। वो जजमेंट कोई भी लीडर नहीं पढ़ रहा है, कोई भी जवाबदार आदमी पढ़ नहीं रहा है। आज तक स्टेट बैकवर्ड कमीशन, 4 बैकवर्ड कमीशन ने मराठा कम्युनिटी का सोशल बैकवर्डनेस नकारा है, सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है। अगर ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ, अगर ये सोशल बैकवर्डनेस प्रूव नहीं करते हैं, तो इनका ये जो अध्यादेश निकाल के, कानून बना के मराठा कम्युनिटी को कुणबी सर्टिफिकेट देके ये कैसा रिजर्वेशन दे सकते हैं साहब? But I find this very strange. लक्ष्मण आगे साहब, you are a very logical person. हमेशा मैंने देखा है सर, उस तरफ कुछ है क्या? आप बार बार उस तरफ देख रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस है क्या सर? नहीं, मैं होटल में बैठा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है सर, जहाँ पर आप बैठे हैं बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जबरदस्त सर, बहुत बढ़िया है। आजू बाजू में सब टेबल है और कस्टमर है, मेरे बोलने से कोई ऐसा थोड़ा, अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो होने दो, कोई बात नहीं, चलेगा। कोई नहीं, ले सच बात बोल रहा हूँ। ये महाराष्ट्र, उनको बोलिए नेशन नाउ पर है सर आप।
आप यस कौन यस। किस जगह पर हैं सर? आप कहाँ हैं, मतलब कौन से शहर में हैं? मैं अभी मेरे माड़ा लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में माळशिरस तालुका है, जो पंढरपुर के बाजू में जी। एक 30 मतलब एक 20-25 किलोमीटर पे मैं बैठा हूँ। ये होटल है और होटल में मैं बैठा हूँ और आपको ज्वाइन हुआ हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप कुछ खाएंगे पिएंगे भी, आप ऑर्डर कर सकते हैं सर, प्लीज प्लीज। आप नहीं नहीं खाते खाते बात नहीं, कीजिए, खाते खाते बात कीजिए, चाय पीते पीते बात यस कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। यस। लेकिन सर मुझे हाँ आप ये बताइए, ये जो आपने अभी कहा है ये सबको मालूम है, 1600 पेज का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसमें प्रॉपर रीजनिंग के साथ बताया गया है बताया गया है। व्हाई मराठास कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ बैकवर्ड कम्युनिटी। ठीक है सर? यस सर ये आपने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, प्रदीप जी ने, मैंने पढ़ा है, मेरे पास है। प्रदीप जी ने तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। मेरा ये कहना है, ये तो सर एकनाथ शिंदे साहब, अजीतदादा पवार साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी पढ़ा होगा। सबको पता है, किसको पता नहीं है, सबको पता है। तो सर ये बताया जाए फिर क्या हो रहा है, मतलब ये मेरी समझ के बाहर है क्या? ये देखो मैंने आपको आपके साथ डिस्कशन करते हुए बहुत बार मैंने आपको बोला है, जापान में भी रिजर्वेशन है, यूएसए में भी रिजर्वेशन है, कनाडा में भी रिजर्वेशन है। पूरे वर्ल्ड में 119 मतलब 119 इतने देशों में रिजर्वेशन चल रहा है। और ये रिजर्वेशन ये देखो, आर्थिक तरक्की करना है, गरीबी निर्मूलन करना है, तो उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम है हमारे हाथ में। वो बीपीएल है हमारे हाथ में, जो 5 ईयर प्लान हर बार आते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर है, हर एक चीज है। रिजर्वेशन का मतलब गरीबी हटाना, गरीबी हटाओ प्रोग्राम ये नहीं होता है। रिजर्वेशन का मतलब 2-4 सोशली बैकवर्ड। मैं एक आपके साथ एक बात करते हुए, जी ये आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत, जी उन्होंने 2 दिन पहला एक स्टेटमेंट किया है। दिया। वो बोलते हैं कि हजारों साल हमने रिजर्वेशन लिया है, और इस 75 ईयर से ये जो रिजर्वेशन आरक्षण है और 2 साल हमने सह लेना चाहिए। ये मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है। और दूसरी तरफ हमारे महाराष्ट्र के जो जानता राजा है शरद पवार साहब, उन्होंने भी ऐसा ही बोल दिया है कि ओबीसी का आरक्षण को हाथ लगा के ये आरक्षण देना ये अच्छी बात नहीं है। ये 2 बड़े लीडर्स अगर ऐसे एक मैच्योरिटी की बात करते हैं, तो हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे महाराष्ट्र चलाने वाले जो लोग हैं, इन्होंने इन 2 स्टेटमेंट का मुझे लगता है स्टडी करना चाहिए और उसके ऊपर थोड़ा चिंतन मनन करना चाहिए। आके साहब, बात यह है कि उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत जी बार बार ये मांग कर रहा है कि जनरल डायर कौन है, जनरल डायर को आप आगे लाओ। लाठी चार्ज किसने किया? मराठा लोग जो वहां पर बैठे थे जलना में, एकदम पीसफुल तरीके से लाठी चार्ज का आदेश किसने किया? जनरल डायर कौन है? बिकॉज आज तक ये कह रहे हैं कि मराठा का एजिटेशन कभी भी वायलेंट था ही नहीं। पूरे महाराष्ट्र में जब भी एजिटेशन हो गया, एक भी ऐसे इंसिडेंट हुआ नहीं कि पहले कभी लाठी चार्ज हुआ था या उन पे फोर्स या बल का प्रयोग करना पड़ा। तो क्या ये जायज है? संजय राउत जी, उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी जब बोलते हैं कि जनरल डायर को सामने आना चाहिए, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हो के साथ? ये हमारे महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी के जो यंग एक्टिविस्ट जो ओपोजिशन पे बैठे हैं, वो उनका आंदोलन डैमेज करना, उनका आंदोलन समाप्त करने का ये गवर्नमेंट में बैठे हुए गृह खातों ने 50-60 गाड़ियां उधर भेज के उनके ऊपर फायरिंग किया, उनको भगाने का लाठीचार्ज करके वो आंदोलन, मराठी में बोलते हैं मुडीत काढण्याचा प्रयत्न। मतलब ये आंदोलन कैसे डिस्ट्रॉय हो जाए, ये आंदोलन लोग कैसे ये आंदोलन से पीछे जाए, ये अभी जो गवर्नमेंट में बैठे हैं ये लोग इस रिजर्वेशन का, ये मराठा कम्युनिटी का जो आंदोलन चल रहा है उससे डर गए। ये बहुत बड़ा बन जाएगा और हम तकलीफ में आएंगे, ये देवेंद्र फडणवीस साहब को मालूम है। इसलिए ये आंदोलन डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने लाठीचार्ज किया है। वो उनके सामने जा सकते हैं, लेकिन आगे साहब ये तकलीफ में तो आने वाले हैं। हाँ, तकलीफ में तो आने वाले ही हैं सर, क्योंकि आ गए हैं आज। ये देखो, सच को सामना करने का महाराष्ट्र के पॉलिटिकल लीडरों का अभी करेज नहीं है। वो डर रहे हैं वोटों से,
डर रहे हैं हम चुनाव जीतेंगे क्या नहीं जीतेंगे, मगर सच तो बताना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। अगर जरूर सच बात। नहीं बताओगे तो आप जाओगे ही जाओगे। तुम इन यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन को रिजर्वेशन का मतलब उनका काउंसलिंग होना है। पहला लीडर्स लोगों का काउंसलिंग होना है, बाद में ये यंग जनरेशन है, इस यंग जनरेशन का काउंसलिंग होना है। रिजर्वेशन बचा है कौन से सेक्टर में? ये जो हमारे देश में जो अभी रूलर्स है, इन लोगों ने जितने जितना शासकीय नियम शासकीय स्थापना है वो बेच डाली है अदानी अंबानी जैसे बहुत बड़े भांडवलदार लोगों को। बचा है कहाँ आरक्षण? आरक्षण बचा है सिर्फ ये सामान्य प्रशासन, तलाटी, ग्राम सेवक, पुलिस, शिक्षक, शिक्षकों की भर्ती हो नहीं रही है, प्राध्यापकों की भर्ती हो नहीं रही है, पुलिस की भर्ती हो नहीं रही है, तो रिजर्वेशन कहाँ मिलेगा? कहाँ पे बचा है रिजर्वेशन? तो ये रिजर्वेशन बचा ही नहीं है, तो हमने उस तरफ क्यों मुड़ना चाहिए? ये हमारे यंग जनरेशन को, हम बेरोजगार युवकों को हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में जो हमारे मराठवाड़ा एरियाज में हम इरिगेशन, खेती का पानी और पीने का पानी उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। उन शहरों पे एमआईडीसी नहीं हो रही है। हमारे महाराष्ट्र की, अगर महाराष्ट्र एक डेवलप्ड स्टेट मैं मानता हूं, मगर ये जो पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नासिक, इस एरिया में जितनी एमआईडीसी है, मगर लातूर में एमआईडीसी नहीं है, नांदेड़ में एमआईडीसी नहीं है, गढ़चिरौली में नहीं है, यवतमाळ में नहीं है। मतलब ये जो विकास चल रहा है ये असमतोल विकास चल रहा है, और जिनके पास विकास नहीं पहुंचा है, डेवलपमेंट नहीं पहुंची है, उन लोगों को, उन नव युवक तरुणों को, जवानों को ऐसा लगता है कि ये रिजर्वेशन की वजह से हो रहा है, ये रिजर्वेशन की वजह से हमारी नौकरी जा रही है, रिजर्वेशन की वजह, रिजर्वेशन की वजह हमको घर बैठना पड़ रहा है। मगर उन लोगों को ये कौन बताएगा कि हजारों साल जिन लोगों से हमने सेवा ली, जिन लोगों को हमने मानवता का जीवन नहीं दिया, जिन लोगों को हमने शिक्षा नहीं देने के लिए शिक्षा नहीं दी, जिन लोगों से हमने छूत अछूतपना किया, ये सब इन पीढ़ियों को मालूम नहीं है। वो बोलते हैं हमको 90% मिले हैं और उनको 60% मिले हैं। 60 वाला आगे जा रहा है और हम 90 मार्क्स पाके भी हम घर बैठ रहे हैं। ये जो हमारे नवयुवकों के मन में रिजर्वेशन को देखने का जो एक मन बना है, इसका काउंसलिंग कौन करेगा? सोशल एक्टिविस्ट कहाँ है? सोशल मतलब विचारवंत कहाँ है? तज्ञ लोग कहाँ है? हमारे लीडर्स कहाँ है? हमारे मिनिस्टर्स कहाँ हैं कि भाई नवयुवक तरुणों, ये रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है, रिजर्वेशन का मतलब ये है। रिजर्वेशन सिर्फ इंडिया में नहीं दिया जाता, रिजर्वेशन जापान में भी दिया जाता है, रिजर्वेशन यूएस में दिया जाता है। ये जो बाइडेन है, उन्होंने अभी उस देश में निगरों को सिविलाइजेशन में लाने के लिए, उनकी तरफ एक मानवता की दृष्टिकोण से देखने के लिए उधर के कानून और स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। तो ये हमारे देश में तो अभी 75 ईयर्स हो चुके हैं। तो अभी मैं मानवता की दृष्टिकोण से, सामाजिक न्याय से, हमारा संविधान क्या बोलता है? हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सारे लोग, हम इधर के सामाजिक न्याय के साथ विकास करना चाहते हैं। ये हमारे संविधान का प्रियम्बल में लिखा है। ये हमारे लक्ष्मण आगे जी, जो आपने बात कही है बिल्कुल दुरुस्त है कि आखिरकार नौकरियां हैं कहां? अरे पब्लिक सेक्टर यूनिट तो सारे के सारे प्राइवेटाइज हो गए। और दूसरी चीज, एक और चीज, हाँ। जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं, आज की तारीख में आप सारी नौकरियां ऑन कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर में रिजर्वेशन होता नहीं है। अरे हमारे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पुलिस भर्ती करने का कैबिनेट के सामने उन्होंने मसौदा लाया था। सबसे पहले हमने अरे उनको ट्रेनिंग दे देंगे, उनको डिटेक्शन की ट्रेनिंग दे देंगे और 3 साल के बाद उनको बाहर निकालेंगे, और उनका जो हेड रहेगा, उनका जो बॉस रहेगा, उनको पूछ के इस महाराष्ट्र का कायदा कानून वो आगे लेके जाएगा। अरे पुलिस डिपार्टमेंट का भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप, ये क्या बात हो गई साहब? प्राइवेटाइजेशन हर एक चीज में। स्कूल तो बचा नहीं है। हाके साहब देव फडणवीस जी ने आगे जाके ये भी बोला, किसानों के लिए जो फडणवीस साहब ने किया, बोले कि 300 करोड़ 3 लाख कांदा फार्मर, किसान जो कांदा का ये करते हैं, उनको
300 करोड़ 3 लाख फार्मर्स को हमने दिए, कांदा जो उगाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है 350 पर क्विंटल के हिसाब से 1 फरवरी 23 से लेके मार्च तक। तो ये कहां तक सच है? और प्राइम मिनिस्टर मोदी आगे जो किसान के लिए देखो हमने क्या किया, एमएसपी हमने 50% बढ़ा दिया, सब्सिडीज हमने 230% बढ़ा दिए, 41 हमने फूड प्रोसेसिंग पार्क्स बना दिए। हाके साहब आप जमीन से जुड़े हो, क्या ये सच है? प्याज की बात है, प्याज पे 40% कैप लगवा दिया है। ये दाल है, तूर बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में, तूर दाल। तूर दाल का रेट लास्ट मंथ में 110 रुपए तक था, आज 160 170 रुपया है। और उसमें भी अदानी ने बहुत बड़ा स्टॉक करवा के रखा है। उसके आगे जाके सोयाबीन का वैसा ही ये चल रहा है, कपास का वैसा ही चल रहा है, और अभी शुगर केन मतलब वूस जो गन्ना है उसके बारे में भी यही चीज है। हर एक आदमी, हर एक किसान, हर एक लोग ये मोदी गवर्नमेंट के हर एक डिसीजन से नाखुश है, नाराज है। हर एक चीज पे हम डिस्कशन कर पाएंगे, हर एक चीज पे। एमएसपी एमआरपी छोड़ दो, वो तो बहुत आगे की बात है जी। हाके साहब 3.5 करोड़ 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा लिया, मोदी साहब का कहना है। बोले कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पूरे दुनिया में उनका चर्चा है कि किस प्रकार से गरीबी को इस रफ्तार से वो खत्म कर रहा है। तो आप इसमें भी कुछ खोट दिख रहे हैं आपको? बोले कि ये इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स है, पूरे दुनिया में यूएन से भी उनको सराहया कि बहुत जबरदस्त काम किया आपने, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाके साहब ये मेरे पास एक रजिस्टर है, फुल स्केप रजिस्टर्ड। मैं कल दिन भर चार जगह पे मेरी हो दे चर्चा इस नाम से हम कैंपेनिंग कर रहे हैं। जितनी भी योजनाएं इन्होंने डिक्लेयर की है वो योजनाएं हम पूरे गांव में जाके उन लोगों को पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी योजना आपको मिली, बीमा आपको कब मिला, आपको गवर्नमेंट का ये नुकसान भरपाई कब मिली। इसके बारे में हम महाराष्ट्र में अभी कैंपेनिंग पे उतरे हैं। कल हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी साहब नगर जिला में थे। हम ये चीजों जो भारतीय जनता पार्टी ने बोली थी वो मिली क्या? हर एक कम्युनिटी को, वो सोशल जस्टिस रहने दो या आर्थिक तरक्की करना रहने दो या एजुकेशन के बारे में जितने वायदे किए थे वो रहने दो, रिजर्वेशन रहने दो, हर एक चीज पे हम पब्लिक को पूछेंगे ये 10 साल में क्या किया इन लोगों ने। लेकिन लक्ष्मण आगे साहब आपकी बात जो है तूर दाल के बारे में, प्रीमियम तूर दाल जो है, प्रीमियम तूर दाल सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो तूर दाल है, जिसको अरहर की दाल कहते हैं यहाँ पे मुंबई में, आज की तारीख में उसका रेट जो है वो 225 रुपए सर, 225 रुपए है। और आगे अभी सब दसरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, नवरात्र आने वाला है, और ये ध्यान में रखते हुए इसका और एक और चीज, बिना चुनी हुई दाल यानी जिसमें पत्थर भी हैं, वो 130 रुपए की है और 120 रुपए की है। ये साहब जी ये देखो तूर दाल जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, खाने की चीज है, और हर एक आदमी को दिन में मतलब यूजफुल थिंग है वो लगती है। और इसमें भी अदानी बंधु अगर स्टॉक करते हैं और नरेंद्र मोदी साहब उनके लिए अगर डिसीजन लेते हैं तो ये बहुत सोचने वाली बात है, बहुत सोचने वाली। एयरपोर्ट हम दे सकते हैं, हम समझ सकते हैं, मगर दाल भी उनके हाथ में, ये क्या चीज हो गई? हाके साहब संजय राउत जी ने जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शिवसेना का जो लोगो एकनाथ शिंदे जी को दिया, पार्टी का नाम और सिंबल सब एकनाथ शिंदे जी को दिया, आज वही चीज शरद पवार जी के साथ भी हो रहा है। सिंबल का प्रॉब्लम है, प्रफुल्ल पटेल जी, अजित पवार जी का कॉन्फिडेंस है कि ये सिंबल और पूरे हर चीज हमारी पार्टी भी हमारे पास आ जाएंगे। सुप्रिया सुले आगे जाकर बोल रहे हैं कि आप डेट्स कैसे बोलते हो कि ये डेट में ऑर्डर होगा, ये तो संजय राउत जी बोल रहे थे स्पीकर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, और स्पीकर जो हमारे नार्वेकर जी है वो गोविंदा में नाच रहे थे स्टेज पर, तो संजय राउत जी ने कहा कि नाचना ये क्या है, स्पीकर को शोभा नहीं देता, आप न्याय दो, हम भी आपको सराहेंगे। तो कैसे देखते हो हाके साहब इस चीज को? ये हम बहुत दिनों से आपके साथ बोलते हुए ये मैं बोलते आ रहा हूँ, ये हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है, निवडणूक आयोग है, और हमारे हर एक कोई घटक राज्य है उसके यहाँ
विधानसभा है, उनके जो अध्यक्ष है, इनकी एक गरिमा है, उनका एक पद है, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, ये सामने रखते हुए ये लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपने सिंबल, पक्ष, पार्टी इसके बारे में आप बोले, भारतीय जनता पार्टी ने जो स्क्रिप्ट लिख के दिया है इन लोगों के हाथों में, उसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। ना कोई लोकशाही बचाने की बात कर रहा है, ना कोई पार्टी बचाने का बात कर रहा है, ना कोई एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पक्षांतर बंदी कायदा क्या बोलता है इसके ऊपर ये तो जो हमारे इसका प्रभाव तो पड़ेगा ना सर लक्ष्मण हके जी, जो आप बोल रहे हैं वो तो सबके सामने जग जाहिर है, ऐसी बात तो नहीं है, ये बात छुपी तो नहीं है, हर एक को मालूम ही है ना क्या हो रहा है। तो उसका कोई ना कोई मतलब आखिर में देखिए साहब, अभी बाई इलेक्शन हुए, 7 बाई इलेक्शन हुए, 2 अगर हम इलेक्शन जो है त्रिपुरा की अगर छोड़ दें, बिकॉज त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में है, वेरी अनफॉर्चुनेटली दुखद बात यह है कि आज की तारीख में जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में होता है उसका इफेक्ट कोई मेन स्ट्रीम बाकी देश के ऊपर नहीं पड़ता है। जैसे महाराष्ट्र का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, वो नहीं पड़ता है। तो आप देखें वहां पर इंडिया अलायंस जो है वो 4 सीटें जीते हैं, आप लोग 4 सीटें जीत के आए हैं, 4, और बीजेपी ने सिर्फ 1 सीट जीती है, मतलब, और वो भी उत्तराखंड में। बाकी हर जगह पे उत्तर प्रदेश की जो सीट है, वेस्ट बंगाल की जो सीट है, और उसके अलावा जो माशाल्लाह ये केरल की जो सीट है, वो सारी की सारी मतलब इंडिया अलायंस ने जीती है। तो लिहाजा लोगों का मन तो बन रहा है ना, धीरे दिख रहा है, मन बन रहा है। मेरे मैं बहुत दिनों से आपके साथ में मेरी राय रख रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ, हर एक जगह पे महाराष्ट्र का किसान, महाराष्ट्र का कष्टकरी, महाराष्ट्र दलित, अल्पसंख्यक, सोशली बैकवर्ड, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के हर एक डिसीजन से नाखुश है। और ये मेरे महाराष्ट्र के आज इलेक्शन हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की 5-10 सीटें भी नहीं आएगी लोकसभा की। कितनी सीटें सर? 5? 5-10 भी नहीं आएगी। 5-10 भी नहीं? वाह! अरे मैं बहुत मैच्योरिटी से मैं आपको बोल रहा हूँ, 5-10 भी सीट नहीं आएगी। सबसे पहला विदर्भ में उनके गढ़ को सुरंग लगेगा। ये देख लो, ये देख लीजिए। वो इंडिकेशन तो आ रही। लेकिन सर ये मैं मानता हूँ आप बैकवर्ड कमीशन के आप मेंबर हैं, लेकिन फिर भी जो आपने अभी बातें बताई और जो एनालिसिस आपने किया, और जो सुप्रीम कोर्ट की जो 1600 पेजेस की रीजन्ड जजमेंट है, इट्स अ रीजन्ड जजमेंट ऑन व्हाई मराठास कैन नॉट बी गिवन बैकवर्ड स्टेटस, यानी मराठाओं का जो स्टेटस है वो उनको बैकवर्ड करार नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? मेरा ये कह रहे तो फिर तो सर ये तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है एक तरीके से देखा जाए। एक चीज मैं आपके सामने रखता हूँ, और वो भी पब्लिक में, सबके सामने, मतलब सुनो, हम दे रहे हैं। एक लॉजिकल बात आपके सामने रखता हूँ जी। ये जो लोग जो रिजर्वेशन का मतलब न मालूम होने के वास्ते अगर लोग ऐसे बोलते हैं कि हम गरीब हो चुके हैं, हमें जमीन नहीं बची है, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, उन लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके 10% ये जो रिजर्वेशन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में दिया हुआ है। इनको इस ईडब्ल्यूएस को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? जी, क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया आपके? मैं समझ में आ गया सर। ईडब्ल्यूएस को फॉलो करना चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर हम इकोनॉमिकली तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं शिवसेना का स्पोक्स पर्सन नहीं बोल रहा हूँ आपके सामने, मैं एक स्टेट बैकवर्ड कमीशन का मेंबर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ। और मुझे जितना समझ में आया है रिजर्वेशन का मतलब, ये ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमिकल तरक्की ना करना, ये पॉलिटिशियन और ये हमारे गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं, पार्टियां हैं, डिसीजन वाले लोग हैं, ये फेल्यूर है कि इन्होंने विषमता पूर्वक डेवलपमेंट किया हमारे देश में। मैंने अभी बोला, मेरे महाराष्ट्र का मैंने बोला, सिर्फ पुणे, मुंबई, ये जो कैरिडोर है, इस कैरिडोर में ही डेवलपमेंट, MIDCs, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, पश्चिम महाराष्ट्र में बड़े बड़े शुगर मिल आती है, मगर जो ड्राईलैंड है, दुष्काली प्रदेश है, जहां पे पानी नहीं पहुंचता, ये सारे बहुत सारी खुदकुशियां किसानों की होती है, इनके ऊपर अगर इलाज देते हैं, खेतों का जो माल प्रोडक्शन आता है उसको अगर MRP MSP देते हैं, अगर उनको डेवलपमेंट, उनको बिजली फ्री में देते हैं, इनको अगर अच्छी तरह से हम प्रोटेक्ट करेंगे तो ये लोग आरक्षण नहीं मांगेंगे।
मगर ये जो हो रहा है ये बहुत बहुत मतलब जी। आजार इस पाँव को हुआ है, दुख इस पाँव को हुआ है, और इंजेक्शन इस पाँव को, बैंडेज इस पाँव को बांध रहे हैं। ये ऐसा ऐसा चल रहा है। अच्छा, दूसरी ये मीडिया है। एग्जाम्पल जो दी जा रही है, दूसरा उदाहरण जो दिया जा रहा है वो ये है कि भाई तमिलनाडु में 59% रिजर्वेशन है अभी भी, तो नहीं था। उसका हाउ नहीं, इज दैट रेलेवेंट हियर? जेन्युइनली है? नहीं, मैं उसके उसके ऊपर, ये तमिलनाडु का रिजर्वेशन है, इसके ऊपर एक कायदा और कानून, ये 60% जिस दिन रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया तो उनका पॉपुलेशन और सोशली बैकवर्डनेस का ये जो सब दायरा है, मैं आपको एक स्पेशली प्रोग्राम में तमिलनाडु के बारे में मैं आपको बोल दूंगा। मगर तमिलनाडु का एग्जाम्पल हमारे दूसरे कोई भी स्टेट में सर, ये लागू नहीं होता। 50%, ये कहा जाता है 50% कैप जब आया, ये रिजर्वेशन उसके पहले दे दिया गया था, इसलिए अभी भी चल रहा है। यस, जी यस, जी। और वो कानून में ही है, और कानून में है, और वहां पर भी तमिलनाडु में भी बहुत बड़ी डिमांड आ रही है ब्राह्मण कम्युनिटी से कि क्योंकि आज की तारीख में ब्राह्मणों का बहुत शोषण हो रहा है, इसलिए उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए, जो कि अभी तक नहीं मिला है। जी। शोषण 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 कौन सा शोषण हो रहा है? ये इसके ऊपर उनकी आरक्षण की मांग पे हम सोच सकते हैं कौन सा शोषण। मतलब ये गरीब होना ये रिजर्वेशन का पैरामीटर नहीं है। मैं अब आज भी बोल रहा हूँ। जी, गरीब होना, लेकिन अमीर होना भी नहीं होना चाहिए ना सर, क्योंकि तमिलनाडु में जो रिजर्वेशन मिला, देखिए द चेटियार कम्युनिटी, नायर कम्युनिटी, वोकलिका कम्युनिटी, दे वर द वंस हु गॉट द मैक्सिमम रिजर्वेशन एंड दे वर ऑल लैंडलॉर्ड्स। आप देखिए। नहीं है ना, है। ये देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जी जी, बोलिए मैं सर। क्या बोल रहा हूँ, ये हमारे महाराष्ट्र में भी अभी एक कंजार भाट ऐसे एक विमुक्त जाति में एक कम्युनिटी आती है। उन्होंने उनके पास जो लैंड थी उन्होंने बेच दी क्या, जी नहीं तो दारू, मतलब क्या बोलते हैं उसे, मोहकुल की दारू निकालना और दारू बेचना, ये जी उनका बिजनेस है। जी उनके हाथ में सोने का कंडा रहता है, गले में सोना रहता है, घर बहुत अच्छा रहता है। जी। इसका मतलब ये नहीं हुआ उसके पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 2000 जी, सोशली इम्प्रूव्ड। राइट। ये बैकवर्डनेस और ये जो रिजर्वेशन है इसके पैरामीटर्स और इसके जो बेसिक बट दिस लॉजिक है, पॉइंट, ये बहुत अलग है। बट लक्ष्मण आगे साहब, आपकी बात मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, बाकी मेरे दर्शक हैं जितने, वो भी समझ चुके होंगे, हमारे दर्शक सब समझ चुके होंगे, लेकिन ये तो मतलब एक तरीके से पॉलिटिकल सुसाइड है ये लोग जो कर रहे हैं। मतलब what ये are they लोग कर doing? रहे हैं, ये रिजर्वेशन है ना, जी ये तलवार रहती है ना, तलवार को एक बाजू को धार रहती है, मगर इस आरक्षण की तलवार को दो बाजू को धार है। ये कैसे भी चलाए, वो खुद भी कट सकते हैं और सामने को भी कटवाएंगे और खुद भी कटेंगे। ये ऐसी है। हाके साहब, बीजेपी का आरोप है कि ये गवंडिया गठबंधन जो है ये सनातन धर्म विरोधी है, तो उस पे आप क्या कहना चाहोगे? जिस प्रकार से जूनियर स्टालिन ने जो वहां पर कुछ, जिस प्रकार सनातन धर्म को कोविड, मलेरिया, डेंगू और इस प्रकार से पूरे सनातन धर्म को खत्म होना चाहिए, तो आपका क्या राय है? बिकॉज आई थिंक आपका पार्टी शिवसेना ने विरोध किया, संजय राउत जी ने बोला कि मैं मेरी राय रखूंगा। हमारा देश, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा निधर्मी, हमारे देश की प्रतिमा, गरिमा, ये गरिमा हमने, हमारा धर्म हमारे प्राइवेट लेवल पे, मेरे खुद मैंने कौन सा धर्म अपनाना है, कौन सा आचार विचार करना है और मैंने क्या पहनना है और कौन सी उपासना करना है, ये मेरे खुद की राय रहेगी। तो मेरा धर्म में कौन सा भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, मगर मेरे देश की जब जिस दिन देश का मुद्दा सामने आएगा तो हमारा भारत देश, हमारा संविधान, हमारा निधर्मी गवर्नमेंट, ये आना चाहिए। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद अभी 77 ईयर्स हो चुके हैं, आज भी हम सिंबॉलिक राजकारण कर रहे हैं, धर्म की बातें आगे ला रहे हैं। इन्होंने इतिहास में ऐसा किया, इन्होंने ये मंदिर बनवाया, इन्होंने मस्जिद बनवाई, इन्होंने ऐसा, आज जात के ऊपर, धर्म के ऊपर दंगे फसाद होते हैं। ये इमेज 2024 में इस देश को, हम एक बाजू को बोलते हैं कि हम 5वीं नंबर की इकोनॉमी वाला बहुत बड़ा देश है, एक बाजू को हम बोलते हैं कि हम चंद्रयान मुहिम सक्सेस कर रहे हैं, चंद्रयान पे हम गए हैं, हमको उसका अभिमान है ना। हम एक बाजू को इतनी तरक्की कर रहे हैं
इतने अच्छे इतना फॉरवर्डनेस दिखा रहे हैं, और दूसरी बाजू को सत्ता में आने के लिए हम धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कौन सी रणनीति है? लेकिन ये सर ये यहाँ पर तो उदयनिधि स्टालिन साहब ने शुरुआत करी है ना, उनको क्या जरूरत पड़ी थी ये बोलने की? कौन भी रहने दो, मैं क्या उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, कौन भी रहने दो जी। जो आदमी सत्ता पाने के लिए, चुन के आने के लिए और निवडणूक के एजेंडे पे दंगा फसाद कराता है, इतिहास का एक दूसरा इश्यू लेके, अरे इतिहास तो प्रेरणा लेने के लिए होना चाहिए। इतिहास तो हमें कोई स्पिरिचुअल बातें सामने जो सकारात्मक हो, जो राष्ट्र के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने में हो, वो इतिहास को इस तरह देखना चाहिए। हम तो आगे जाके राहुल गांधी जी ने कल वहां पर वही बोला है बेल्जियम में, उन्होंने कहा कि गांधी का देश या गोडसे का देश, गांधी से इंडिया और गोडसे से इंडिया। वो जब भी सावरकर वाले इशू उठाते, गोडसे का इशू उठाते, तो एमवीए में एक दरार हो जाता है। पवार साहब ने बार बार, उद्धव ठाकरे जी ने खुद कहा बार बार, सावरकर का इशू ले लोगे तो तकलीफ होने वाला है। तो कैसे आपको लग रहा है कि 2024 तो सब एक साथ आ जाएंगे? नहीं, मैं मेरी राय आपके सामने में रखूंगा कि इस देश में आज भी चुनाव सिंबॉलिक पॉलिटिक्स, सिंबॉलिक धर्म हाथ में लेना है। हम इस कम्युनिटी के, हम इस जात के, हम इस धर्म के, चलो दंगा फसाद कराएंगे और पोलराइजेशन करेंगे। हर एक लीडर्स ने बेरोजगारी पे बोलना चाहिए, हर एक पार्टी ने किसानों के बारे में बोलना चाहिए, हर एक पार्टी ने इतनी बड़ी, मैंने लास्ट बार आपको बोल दिया था, 1% लोगों के हाथ में 85% इस देश की संपत्ति है। करेक्ट करेंगे, मैं भी कल और अपडेट करूंगा। 1% लोगों के हाथ में 85% प्रॉपर्टी है। सर ज्यादा होगी अभी, ज्यादा होगी जी। और 99% लोगों के हाथ में 10-15% प्रॉपर्टी है। जी। अगर ऐसा इतना इनबैलेंस अगर इस देश में, क्या इन लोगों ने जन्म लिया है? कोई लोगों ने सिर्फ शारीरिक श्रम करने के लिए जन्म लिया। I am absolutely certain Mr. Lakshman Hake will shortly be in parliament. लक्ष्मण आगे साहब बहुत जल्दी लोकसभा में वरना राज्यसभा में जरूर होंगे, ये पक्का, इसमें दो राय नहीं है। और ये मैं 10वीं बार बोल रहा हूँ यहाँ पे, याद रख लेना। एंड रिमेंबर यू हर्ड इट राइट हियर फर्स्ट। लक्ष्मण आगे साहब भूल मत जाइएगा, मैंने बोला था कि आप लोकसभा या राज्यसभा में जरूर होंगे बहुत जल्दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच सर, ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय जय भवानी, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यस, thank you so much sir for joining us from a restaurant near Pandapur. So nice of you, thank you very much. Thank you. That's really wonderful. Well, you know what, he's absolutely right, because at the end of the day you have to read the judgment of the Supreme Court. आप Supreme Court की judgment पढ़े तो सही भाई। How can you just issue a GR making all the Marathas Kunbis? मतलब आप कुंबी सर्टिफिकेट, In fact, the Maratha community themselves, certain sections are objecting to it. Yes, Is that- कि भाई हम लोग how can कुंबी, you give Marathas हम लोग certificate? कुंबी थोड़ी। I think this government is And perhaps there are already agitations for against OBCs coming out. They are जल समाधि की कोई बात कर रहा है, कोई अलग चीज तो बंद की बात कर रहे हैं। तो उसमें ये होने वाला है सर कि आखिर में मतलब the government of the day, the state government is going to find it very difficult to explain. I think especially Mr. Ajitdada Pawar is going to find it very difficult to explain. Bilkul. How are Marathas Kunbis? They certainly are. Kunbi is one of the castes of the 96 castes which are there among the Marathas. Kunbi is also certainly one of the castes, but at the same time, I don't know what these guys are up to. Why don't they tell the truth? Anyway, at the moment with us from the NCP, we have Dr. Surena Malhotra. Dr. Saab, namaskar. Namaskar. How are you, ma'am? Namaste. How are you? I'm Namaskar. fine. Namaskar. Thank you so much. Great pleasure having you on the show again. Namaskar. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bhavani, Jai Shivaji. तो डॉक्टर साहब ये बताएं, अब तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, सुप्रिया सुले जी ने तो कह दिया कि भाई वो प्रफुल्ल पटेल साहब ने उनको तो डेट भी बता दी है कि किस दिन इलेक्शन कमीशन जो है वो जजमेंट देने वाली है कि जो अपना एनसीपी का सिंबल है वो अजीतदादा पवार को मिल जाएगा, नाम भी मिल जाएगा। ये क्या मतलब, ये भारत में क्या हो रहा है? मेरी समझ के बाहर है। आज तक कभी ऐसा देखा नहीं है पहले। आप बताएं जरा इसके बारे में, मतलब what do you think is happening? What is going on here? So what is happening is, as we all know that why these people have gone and joined the other party, which they should not have. See, NCP, Nationalist Congress Party,
has been National Congress Party is founded by Mananiya Adaniya Sharad Pawar ji, Ji. and it cannot be separated out. The clock which Mananiya Sharad Pawar ji has selected as the chinna that denotes like the clock always runs forward. It is clock denotes progress. It is always going forward. It doesn't go back. So that is what the NCP stands for. NCP is a very progressive party, and everybody, I mean, only few people have gone there, but the people, the ground level people, all of them are with Pawar Sahab. Everybody is with Pawar Sahab. We are also there because we believe in his ideology. We believe in his secular ideology that take everybody together and go march forward. India will be totally, really progressive if this India comes and rules whatever India, Bharat. But this is what Nationalist Congress Party stands for, most progressive. That is the need of the nation now. Yes. Otherwise, absolutely. the nation is going, as we have seen, the nation is going backwards. Nation is going towards Manusmriti. No, we believe in the democracy. The democracy is in danger. And it is only with people like Sharad Pawar Sahib, as we have always seen, that he is the father of everybody. So the party, the whole nation will go ahead. Pradeep ji. Dr. Malhotra, now you want development. Mr. Modi says, look, I have given you development. Today, the G20 summit, India, Bharat has become Bharat Vishwaguru through G20. That is what Mr. Modi says. He says, one earth, one family, one future. That is what Mr. And achievements he talks about. He says, look at the corridors that we have today. As on today, the Delhi Declaration and the other economic integration between India, West Asia and Europe, building a corridor, India, Middle East, Europe. Look at the developments that you're talking about. You talk about development where Sharad Pawar Sahib was concerned, but with Mr. Modi's development, do you think you stand a chance in 2024, the way things are going on, Dr. Malhotra? See, basically, if you look at the facts, basically we'll have to consider the facts. We cannot just say that there is development, but the facts suggest something very different. As the GDP was 7.8, which was told that GDP is 7.8, but then there appears to be a lot of discrepancies, and it is found out that actually it is only 4.5, and last year in April it was 13.1. So then there is a sharp decline. It was post-COVID, it was a hype, and then again it is a decline. It is 4.5. See, there is a lot of discrepancies between real progress and whatever is a hype progress. Because of G20, the things are being shown that okay, India. I wish everything was true. Really, I truly wish, because we want India to go ahead. But then there are certain facts that you cannot overlook. Certain facts, like I mean, when you talk about India's progress, we have to see that what are the domestic earnings and what is the expenditure. So what is a gap between them? Normally the domestic earnings domestic income should be equal to the expenditure, but it is not so. It is not happening. Even if we consider the US based BEA formula, if we apply, where they consider the average it out, yet if we put that, so then it shows that it is not so. It is only 4.5. And basically, we have to see that the progress, in which sector the progress is happening. I think the last, in this year, the progress has been happening in the construction business and certain other businesses. But that business or that factor doesn't give rise to lot of jobs. The jobs will come when the manufacturing sector will progress. And the manufacturing sector is really not progressing. It has been there, they have been trying to do that, but there is no success. And only when the manufacturing base is there, then only there will be multiple job creations. How you see in China, there's multiple job creations. So manufacturing sector has to be made very strong, and which is not happening. Adani Modi is trying to take India somewhere. Yes, it is going somewhere, but then where? People have to, people have to get a decent job. Everybody should have
a good income. Dr. Malhotra, Prime Minister Modi says 13.5 crore people, I have taken them out of multi-dimensional poverty in the last 5 years. And he says the UN has appreciated the efforts of pulling the people above the poverty line. 13.5 crore people. Prime Minister Modi again goes to say MSP 50% increase in the minimum MSPs have done it, and increase in subsidies is around 230%. He's built around 41 foot where the farmers are concerned. Dev Fadnavis here, he says, look what they have done for the onion farmers. 300 crores has been distributed to 3 lakh onion farmers. 350 rupees per quintal. This is what they have been doing for the onion prices have stabilized, the tomato prices have stabilized. How are you going to negate it, Dr. Malhotra? No, this is, see, whatever happens just before the summit, just few days before the summit, because you have seen throughout that how the farmers were affected because of the onion prices. They were so, for the tomato prices, since the prices was not there, the onions, the tomatoes, they were thrown out on the roads. People were in fact burning the crates also. So what? That is the ground reality. Whatever we show in terms of advertisement, where so much amount of money has been spent on advertisement, that is all not true. It has to be a consistent growth. The consistency is lacking. This is what I feel. The consistency is definitely lacking. And, but that has always been the case, ma'am. That has always been the case. It is nothing new. Let's be very clear, and that is true for the whole world. It is not as if it is specific only to India. Usually in a democracy, the development is usually skewered in favor of, say, the middle class and the industrialists and so on. India is experiencing the same thing. But the fact also remains, as the IMF have said, that India has brought in the last 5 years more than 23 crore people have been raised from below the poverty line to normally acceptable level where they are not extremely poor. They have been raised out of extreme poverty. So that's an achievement. Dr. Surena Malhotra. Yeah. See now, but okay, all that is correct, but then India requires a lot of funds. Now you see the new thing which is coming up, that they are trying to change the name of India to Bharat. Now you... No, Bharat to pehle se hi naam tha. Bharat to hai hi naam. Bharat matlab in the administration, where anything in the administration purpose. नहीं, हिंदी में भारत ही लिखते हैं. भारत सरकार लिखते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखते हैं मैम. हाँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर सब जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन वाइज अब से भारत दिखेगा. इंडिया ही चले. हाँ, अब से भारत चलेगा. इट इज वेरी नाइस. इट इज अ गुड थिंग, बट एट द सेम टाइम the expenditure which will be required for doing all that, the 80 crores is normally required for the people for to get the food, for to give the people proper food is 80 crores which is required, and here you are spending 14,304 crore rupees on expenditure. This is what is being said, that so much amount, what is the need for it? As you said very correctly, we say India, we say Bharat, so why have this change now? Now when India Alliance has been formed. So that people like you don't talk about price rise. Yeah. That's it. और क्या मतलब भाई देखिए, आप प्राइस राइज के बारे में बात करेंगे, आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, आप मणिपुर के बारे में बात करेंगे, तो सामने से वो कुछ तो बात करेंगे. Exactly. This is the diversion tactics. And BJP are masters at diversionary tactics. Let's be very true. That is very true. So how will you combat it? That's what Pradeep ji had asked you. How will you combat it? मतलब उससे आप मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए, इंडिया वर्सेस भारत हो गया, अब भारत हो गया. देखिए, इंडिया कॉलोनियल नाम था, अंग्रेजों का नाम था, हमारा नाम भारत है. नंबर 2, वो आदरणीय सम्मानीय स्टालिन साहब के जो सुपुत्र हैं, उदयनिधि स्टालिन, उनको क्या जरूरत पड़ गई अभी ये बोलने की? मतलब हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा. सबको डिफिकल्टी में डाल दिया. मतलब पूरे आप जो मर्जी कह लीजिए, भले इंडिया अलायंस के लोग जो मर्जी कह लें कि भाई एवरीबडी हैज अ राइट टू देयर ओन व्यूज, बट एम्बैरेसमेंट तो होगा ही ना. आपने सनातन धर्म को HIV के साथ कंपेयर कर दिया, कोविड-19 बुला दिया, मलेरिया, डेंगू. मतलब ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो हास्यास्पद बात है, लेकिन फिर भी आपको लगता नहीं है ज्यादा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इंडिया अलायंस के लोगों में कि भाई ऐसी उल्टी सीधी बातें ना करें? मैम कुछ पर्सनल टॉक होगा. एक मतलब आई वांट टू टॉक अबाउट दिस. एक शशि थरूर जी ने एक बहुत अच्छा ट्वीट डाला था. उन्होंने बोला था कि क्यों ना हम ही इंडिया को
मतलब हम ही इंडिया को भारत क्यों नहीं, हमारा जो अलायंस है, हम अलायंस को भारत क्यों नहीं बोलते? भारत मीन्स बेटरमेंट, हार्मनी एंड रिस्पॉन्सिबल अचीवमेंट. So if we put that, because the harmony is there, achievements are there, तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि अभी भारत इन्होंने ले लिया, अभी नाम नहीं चेंज करते, ये अच्छी बात होगी. दिस इज ऑन द लाइटर नोट. जी. लेकिन ये बात तो है, आपकी तीसरी मीटिंग यहाँ पर हुई मुंबई में और उन्होंने इंडिया का नाम भारत कर दिया. मतलब ये बात तो है. लेकिन उदयनिधि स्टालिन साहब के बारे में बताइए, उन्होंने जो बोला है. नहीं, उसमें तो उनका वो पर्सनल व्यू पॉइंट होगा. ये देखिए साहब, पर्सनल व्यू पॉइंट होगा. You got a problem everywhere. डॉक्टर मल्होत्रा, कल बेल्जियम में राहुल गांधी जी ने फिर वो मुद्दा उठा लिया, गॉडसे इज इंडिया, गांधी इज इंडिया. फिर वो सावरकर वाले इशू उठेंगे, फिर अडानी वाले इशू में मतभेद. तो ये मतभेद लगातार चलता रहेगा. और राहुल गांधी, द कांग्रेस लेड ऑपोजिशन इंडिया, is not going to leave Savarkar, is not going to leave Godse. How are you going to, Pawar साहब ने clear cut कहा कि Savarkar is not a big essential important thing where Maharashtra is concerned or the country is concerned. And Uddhav Thackeray ji ने clear cut बोला, Mr. Rahul Gandhi, I want to let you know Savarkar is a devoted God-like figure for us. We cannot tolerate anything against Savarkar. How are you going to do it? Dr. Malhotra, you got a big challenge keeping the the MBA together. कैसे करोगे डॉक्टर मल्होत्रा? There is a challenge because 26 parties coming together. There is going to be some sort of a challenge. अभी तो 28 हो गई मैम. 28 parties. So all of them are may have some opinions, but they will definitely come down to common minimum tactics, and then they have to follow those through. Something like the farmers issue, the unemployment, the paucity of the job, and there's an acute paucity of the job. These are the main things, and people are really harassed about it. People are not really worried about all these different topics. People want job, people want security, and people want harmony. All the people of different castes and all, they want to live in harmony. They want to live without fear in India, Bharat. They want to live over here without fear. So no, over here, ma'am, it's a very important thing what Mr. Sharad Pawar said recently. He himself had gone to Jalna, where the Maratha community is sitting on fast, where he himself said that don't be misled, because at the end of the day, if you look at it, at the moment, unless and until there is a constitutional amendment allowing for reservations beyond 50%, the state government really cannot give reservations. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि हम जीआर निकाल रहे हैं. अरे जीआर कैसे निकालेंगे? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है. Very true. That is very true. They are always misleading people. That is the thing. They are always misleading the people. Whatever is the practical truth, that is always they show something else, and they are misleading. But then people who are on the fast, they also are thinking thinkers, and they are also going on with their fast, which is actually sad, very sad. लेकिन मराठा कम्युनिटी को कुंभी का सर्टिफिकेट देना, ये लॉजिक कहाँ से आ गया? मतलब मेरी समझ के बाहर है. ठीक है, 96 जो जात हैं मराठाओं में, उसमें कुंभी भी आती है, और कुंभियों को पहले से ही ओबीसी का स्टेटस दिया हुआ है. अगर सारी मराठा कम्युनिटी को आपने कुंभी बना दिया, तो मतलब रिजर्वेशन में बचेगा क्या? Yes, that is true. How can the Maratha consists of numerous different yes parts? So it is not only Kundi. You have said an unrest across Maharashtra. There is an unrest across Maharashtra. Every leader says the OBCs are unhappy because they believe that agar reservation dega, it will affect their quota. The Marathas themselves oppose. Some sections of the Marathas opposing that no, you can't give us a Kunbi. We are not Kunbis. How can you give us a Kunbi OBC? We want a separate OBC certification. Now everywhere OBCs are unhappy. The Marathas are unhappy. Various sections are unhappy. Now everybody is unhappy. All Maratha agitations, Dr. Malhotra, yes. All Maratha agitations have been peaceful. Now Uddhav Thackeray ji and Sanjay Raut ji and within sections of Sharad Pawar ji are asking who's General Dyer? Who has ordered the lathi charge of the Maratha peaceful agitation in Jalna? Are you also finding out who's General Dyer? Who ordered the lathi charge? Our party has made it clear that it is the responsibility of the Gruha Mantri
It is a responsibility of the Group Mantri. They should have seen the orders. Must have. The police are not going to one day just get up and do the lathi charge, which has not been done for so many years. Then how suddenly? So the responsibility lies with the Home Ministry. That is what our party stand is. That's right. Now, as far as the but very frankly speaking, I just want to pick your brains on this. What Pradeep ji said just now. It's going to be very difficult for the government to control this because the OBC community, there are so many of them in Maharashtra, they are all going to feel very insecure about the new reservation which is being given to Marathas because they all feel it is going to come from their quota. The Marathas themselves, quite a large section of them, don't want to be called Kunbis. A small part, about 7% of the Marathas who are Kunbis, they say, bhai, hame Kunbi ka certificate de do. Now, which means, वो 7% जब OBC से subtract होगा, तो OBC का जो reservation है वो अपने आप कम हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि पूरे महाराष्ट्र में कोई agitation शुरू होने वाली है इसको लेकर. चालू भी हो गया, it's already So on. that's what, in that regard, Supriya Sule Taiji, she had suggested that there should be a संसद में एक सेशन होना चाहिए, अर्जेंट इमीडिएट अर्जेंसी एक सेशन होना चाहिए जहां पे ये सब डिस्कस होना चाहिए. This is a requirement. Everybody has to sit down and work it out and properly think about the whole thing. It is not somebody, one leader says something and then In fact, just now we had the OBC leader of the DANGAR community, Mr. Lakshman Hake with us. वो हमारे साथ थे अभी आपके आने के पहले. और उन्होंने ये एक बहुत he came up with a very good point. He is from the Shiv Sena, that is the Uddhav Sena, and you're all allies at the moment. Yes. He said he made a very good point. He said, even if you grant reservations today, where are the jobs? Because you have sold all the public sector units. Public sector units तो सारे बिक गए. और उसके अलावा सरकारी नौकरियां जो थी एक जमाने में वो आपने कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर वहां पे हायर कर ली है और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर में रिजर्वेशन नहीं होता मैम. तो ये क्या मतलब लोगों को मालूम नहीं है कि ये लॉलीपॉप दे रहे हैं उनको. That is very true. This is what they do. The main thing is as we were discussing before, there's hardly any jobs. As I said, manufacturing should be given protsahan, as we discussed last time also, that GST and all that should be looked into, and facilities of manufacturing should be there, so that extra job creation should be there, will be happening, and then that will only denote progress. And this is exactly what you said. They are misleading the people. Manufacturing units are shutting down, ma'am. Yeah, that is a very big, a very alarming thing which is happening, and people are not realizing that this even retail outlets are shutting down. Retail outlets are shutting. If you go to all the malls in Mumbai, you will find at least 30% of the places which used to have huge crowds at one time, they've down shutters. They are not there anymore. Exactly. So what's going on? And Rahul Gandhi went on to say that GST and Notbandi has destroyed the small businesses totally. It really has destroyed. Yes. And this is what. And the BJP is, Modi ji is portraying a very rosy picture of India. But that's what I said, the ground reality is very different. Ma'am, where we stay, and there are offices also, even in BKC for example, and if you go to say Juhu, Villeparle and Andheri West, etc., you will find most of the small shops that used to be there. वो किराने की दुकान हुआ करती थी ना, छोटी हर जगह पे, वो रुया पार्क के बिल्कुल बिगिनिंग में होती थी और आगे जाकर के जुहू में हुआ, वो सब बंद हो गई हैं. They were shut down. That's what. So ये सब क्या आपको लगता है सरकार को दिख नहीं रहा है या क्या हो रहा है, मतलब why? Do you think they can't see it or what? सरकार को तो दिख रहा है, but they want to justify their notbandi. If small traders and all, they require some cash in hand and they require a small amount of cash to do their business. So how are they going to survive? And Modi ji doesn't want to show the people from abroad this ground reality, which I think the India Alliance should come forward and tell people about this thing. We have to tell the people why all these things are happening. But ma'am, none of the channels are talking about this. कोई channel इसके बारे में बात नहीं करता, हम लोगों को छोड़ के.
Very frankly. So, I हम should लोगों be को छोड़ thankful. के और कोई बात नहीं करता इसके बारे में. I'm really thankful to you all that channels like you exist, and that's a very good thing. That is what that it will help us to save democracy. Right. Other channels, you know what is the problem. They are facing the problem. Dr. Surendra Malhotra, it's been a great pleasure talking to you, and thank you so much for driving so fast to be able to come back home to be able to join us. Thank you very much, ma'am. Very kind of Really, you. really kind of you. Namaskar, Thank ma'am. you so much. Namaskar. Jai Hind, Jai Maharashtra. Jai Bhavani, Jai Shivaji. Thank you. Vande Mataram. Vande Mataram. Well, we do have a problem, Pradeep ji. बिल्कुल सर. We have a major problem in the sense that at the end of the day, I'm not joking. I mean, all those small shops that I used to see around, I don't know what the situation is in your area. You live around Kalina and Santa Cruz. I mean, there's general, that is, we believe Rahul Gandhi when he says that Yes. GST and notebandi has destroyed the In small fact, businessmen. I- जो vendors छोटे-छोटे होते थे, Pradeep ji, I दुकानदार remember, सब बंद हो गए. I remember we had done a show also on that. बिल्कुल. आपको याद होगा वो एयर इंडिया कॉलोनी के बिल्कुल साथ में. Correct, sir. आप खुद बता रहे थे यहाँ पे वो कोई 20 के करीब दुकानें हुआ करती Yes, थी. sir. वो सारी डिमोलिश हो गई. सब खत्म हो गए बेचारे. वो कहाँ गए किधर गए किसी को मालूम ही नहीं है. हालत खराब हो गई सबकी. And Mr. Rahul Gandhi said the state governments where the Congress ruled states are there, it is the job of the CM of that Congress ruled state to see that the treasures are open to them. The banks' doors are open to them so that they can get loans to see that they finance the small businesses. Now, this was what Mr. Modi had come when he came in power. Yes, he did. He said I that. am going to have, yes, a reverse integration जो बोले थे कि नीचे से ऊपर जो गरीब से गरीब परिवार को हम self sufficient बना देंगे, and that will in fact raise the economy. But that now the hasn't corporates accuse him of, कुछ families को हम मदद कर रहे हैं, पूरे देश का मदद नहीं कर रहे. The Congress allegation. Now it depends whom the country believes. That's right. But the fact is that those families that the Congress keeps pointing fingers at have really and truly increased their wealth by a million times. But This is we absolutely used true. to accuse the same thing when 2009 when the when Congress मनमोहन was सिंह there. सरकार था तब बोले अंबानी अडानी की सरकार है, ये है वो है. वो तो छोड़ रहे हुए. साहब वो ऐसा है प्रदीप जी, मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे, टाटा बिरला की सरकार है, उसके बाद अब धीरूभाई अंबानी साहब आ गए तो अंबानी साहब की सरकार है, उसके बाद अब अंबानी अडानी की सरकार है. मतलब ये हिंदुस्तान में चलता है. It's going on. You have lot to prove. साहब ये हिंदुस्तान की Convince the people. ये हिंदुस्तान का चरित्र है, ये हिंदुस्तान की प्रवृत्ति है. हमेशा ही हम लोग ऐसी बात करते हैं. We don't like industrialists per se. I don't know why. I thought by now we would have evolved into a society where we would admire all the people who are creating wealth. But then it is also the industrialists' fault. They should also come forward and talk about how they have created wealth and how many jobs they've given and so on. No, and so I on. think Sharad Pawar is very, very practical in these things. Yes. He has no problem saying that I am promoting the business. Yes, I am absolutely. with the businessman because they are creating jobs, they are creating industries, They are creating they are wealth. creating covers, They are creating wealth, sir. service, giving Yes. service. So why should I be afraid or shy of accepting it? That's They are. you can't. You don't live in a socialist state. You don't live in a communist state. And people have लेकिन प्रदीप जी एक thrown the इंडिकेटर ideology of क्योंकि- socialism and communism out of the door, क्योंकि out of the windows. क्योंकि प्रदीप जी आपने बात करी शरद पवार साहब की. अब जब शरद पवार साहब के बड़े अच्छे मित्र हैं अजीत गुलाबचंद जी एचएस बिल्कुल. एचसीसी के, और वो क्या था उनका जो उन्होंने टाउनशिप बनाई थी लवासा. लवासा. अब वो लवासा है और सहारा की जो टाउनशिप थी अपनी एम्बी वैली, एक ज़माना था इतने ज़बरदस्त तरीके से चल रहे थे, इतने ज़बरदस्त चल रहे थे. आज की तारीख में देख लीजिए साहब क्या हाल हो गया है. सो we have to really look at that as to what is happening. Why is it that all these places just shut down, and why is it that all these places they didn't succeed, and when they failed, quite a few people lost everything. Quite a few people lost their jobs, they lost their livelihood, they lost whatever it was that they had left. So maybe the government should take a second look at what they're really doing, and the prosecuting agencies and the investigating agencies should also perhaps Go how slow. should I put it? Not just go slow. Perhaps should we should go through a process of learning as to what is good for the country. Like everything which seems to be not within the law is not really illegal. That is something that we really and truly have to look at, because at the end of the day, you need job creation.
You need people who can create jobs, who can create wealth, who can create industry, who can create businesses. Now, the way we are going at the moment is following into a trap where what I'm afraid of is that after 3 years or 4 years, we might actually suffer from deflation, not inflation. Where people might stop buying things. A Then what happens? genuine business loss should be taken as a genuine business That's it. loss. You can't impose criminal punishment on him. You Sir, can't have his houses raided, and you Pradeep can't. ji- You understand? You know, the government has to now. Everything the BJP believes in privatization. If they are privatizing ISRO, it's needed also, because if you see how Mr. Madhavan or before him Nambi Narayan said that he had only one bus for the entire ISRO staff. And prior to that, One car, Sir, which prior was to not that, used. during Homi Bhabha's time, Bilkul. they brought the nozzle of their first rocket on a bicycle. Yes, yes. So, you got a quick fix between privatization, and if you're going for privatization, you don't kill them immediately. Sir, allow them to bankruptcy- grow, allow them to groom, allow them to finance them, let them Sir, grow. bankruptcy is One not a failure. crime. Yes. Bankruptcy should not be treated as a crime, but as bad business decision making. You made certain bad decisions, so which means you have gone bankrupt. So that does not mean that you are criminally culpable for making bad decisions. I mean, it happens. The best of the companies all over the world go bankrupt. But that doesn't mean that all the people over there are behind bars. I mean, you can't be put behind bars just because you couldn't run the business properly. I mean, incompetence should not be a crime. That's it. That's what happens. That's what happens in so many places. Anyway, let's take a look at some of the. I hope people wake up to the fact that this is a new century and we need a new set of laws. To encourage business, to encourage entrepreneurship, and to encourage people to invest, and to encourage people from being employees to becoming employers. That is the most important thing. That's what Mr. Modi believes in, by the way. Right, we've got a few comments. Let's take a look at some of the comments which have come in. That of course for Dr. Seema Malik. Nice to see what Angrez chale gaye, aulad chhod gaye look like. Is he talking about us? Okay. Sharad Pawar should go back to his Congress-trained ways and create sectarian religious violence, blame it on Hindus to regain power in Maharashtra, while looting Maharashtra wholesale behind all the smoke and mirrors he creates. Unknown is best. Unknown is best. All right. You guys, Both are known as best. he is the same guy. You can't even put out your name. Bharat maa ke char sipahi, Hindu, Muslim, Sikh, Isai. God bless India and all Indians. Brajesh Khanna saab likhte hain. Brajesh Khanna 968. That was a nice comment. Thank you so much. Mr. Dhananjay Junarkar, if your two eyeballs working divergently, you cannot focus and see Congress is so blind vision. ये कौन है साहब? मुकुंद राजन साहब. Yes. मुकुंद राजन 961. 8961. 8961. Sena corrupt mind, selfish leader. Naveen 7633. Do we have any more? Alright, individual views are okay, but how can people say about eradication about a peaceful group? Madmen like him should be held responsible for such remarks. Vinay Yadav, ME1MS. Now, I don't disagree. I don't disagree, by the way. That what Mr. Stalin Jr. said was very, very provocative. Bilkul. And I think he should be held to account for what he said. I entirely agree. I mean, you don't destroy an entire community because something bad in that particular thing. You talk about the badness or what is wrong in that particular. You redeem, have a consensus of improving. Sati was bad, triple talaq was bad, verbal triple talaq. So you can't say the entire Islam is bad because just one triple talaq was there. Or Udayanidhi, Stalin to theek hai. साथ में A Raja Sahab is a Christian. Exactly. Now, as being a Christian, being a practicing Christian, how can you attack some other religion? No, this is not done. मुझे कभी-कभी ऐसे feel हो रहा है कि this was a deliberate ploy. Is there coming months will tell us which direction everything is going on. That's right. That is absolutely correct. And do remember, who was it who said? I think Mr. Ganesh Khankar said just the other day, yesterday, that because of the growing influence of the BJP in Tamil Nadu, the DMK is feeling the heat. That's what he said. Maybe that is one direction. One is that they appeal to their Own constituency, yes. constituencies, and they expect BJP to do the rest to polarize the other lot. Yes.
So And it'll be which again is doing- DMK versus BJP. Yes, exactly. And then Right. you have the Tamil Nadu chief of BJP doing a fantastic campaign. Gully, That's right. gully, har Annamalai. ghar mein ghus rahe, Mr. ja rahe, Annamalai, he's doing a wonderful yes, job. He's working very hard. For the first time, I have seen a BJP chief in Tamil Nadu doing great work. And BJP has taken Tamil Nadu elections very seriously. Yes, they have taken it seriously. Yes, they have. Yes, they have. Right, that's it. That's just about it as far as tonight's show is concerned. आज के show में सिर्फ इतना ही. With the news once again that the Delhi Declaration is a magnificent piece of diplomatic work. Great triumph for Mr. Modi, a great triumph for Bharat, that is India, which is absolutely fantastic. So, congratulations to all those people involved. Really proud to be Indian or Bharatiya, whichever way you put it. So, from both Pradeep ji and myself, आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram.